Slow it is. Please stop talking. Last time we completed our discussion on the behavior of concentrically loaded column. We also solved two design examples. Today we will be discussing the column subjected to axial load as well as bending. Okay, and last time we said that if a column is subjected to bending along one of its axes, it will be called as case of uniaxial bending. If it is subjected to bending along both axes, it will be called as case of biaxial bending. Okay, that's आवाज राजी आवाज राजी अम्मा को शौक रच तक तुम लगे हाँ sorry. Okay, so let's start discussing this case of a column subjected to axial load and uniaxial bending. This is a rectangular column which is subjected to eccentric load Pu. Okay, so when we say that a column is subjected to eccentric load Pu, it means that there will be an axial load on the column plus bending moment along one of its axes is shown in this figure. So if Pu is acting here, which can be a case of an H column as we explained in the last lecture, then the reaction of the beam or slab, which is a shear force in the beam or slab, will be transferred as an axial load to the column plus some bending moment. If the bending moment is unbalanced, as is the case of H column. Okay, but if it is the case of a concentrically loaded column, then there will be no bending moment because the total axial load will pass through its centroidal axis and there will be no axial bending moment transfer because there will be no unbalanced bending moment. So as long as there is no unbalanced bending moment, then no bending moment will be resisted by the column. But if there is some unbalanced bending moment, then this bending moment must be resisted by the column. Okay, so if this is the case, then phi Pn must be greater than or equal to Pu. As we have said in our previous several lectures, phi Pn, any nominal capacity, be its flexural capacity, shear capacity, or axial capacity, or torsional capacity, when it is multiplied by phi, it will be called as design capacity. Without phi, it will be called as nominal capacity. And nominal capacity, we have seen in our previous lectures, that nominal capacity is given to us by the specified strength and specified dimensions. Because if you look at the equation of nominal flexural capacity, Mn, it is equal to As Fy d minus A by 2. So d comes from the size of the beam, As is the reinforcement area, and Fy is the yield strength. So nominal capacity comes from the specified dimension, whatever dimension you specify. Specified means when the designer specifies that this dimension shall be used. And the yield strength are the strength also specified by the designers. And what is the difference in the actual capacity and the nominal capacity? Actual capacity can only be obtained if we test the specimen in the lab. Okay? Without that, we can never determine the actual capacity
because the actual capacity will be determined from the actual strength and the actual dimension. Actual dimension which have been used. So in a lab, if you want to test a specimen, you can actually measure the size of the specimen. Okay, and you can also test the material, whether the strength of the material is exactly 60 ksi or it is more than this or less than this. But when we specify the material strength, so we assume that the yield strength will be equal to 60 ksi. In many cases, the yield strength will be more than the specified strength, but the concrete compressive strength will be less than the specified strength. This is what we have seen in our practical experience, that the compressive strength of concrete usually comes out to be less than the specified strength. If C prime 3 ksi, so it will be 2.5 or 2.7 ksi. Because of the quality control and many other uncertainties associated with the concrete properties. And because steel is produced in a more tight environment, so the steel strength will be generally more than the specified strength. Okay, so anything with subscript n will be nominal, and then when this nominal is multiplied by phi, it will be called as design strength. And why do we multiply this by phi? Because we have seen in the strength design method that the capacities, nominal capacities, will be reduced there, and when in order to reduce them, we can multiply them by factors less than 1, which are called phi factors, and these phi factors are given to us by the ACI code. On the other hand, the loads are amplified by factors which are larger than 1, and this is also one of the requirements of sustained design method, that the loads which will give us demand must be amplified, increased. Then the service load, not the actual load, the service load. Okay, and the strength, nominal strength, will be reduced. It will, and then it will depend on the capacity, whether it is flexural capacity or shear capacity or axial capacity. You have seen in the case of flexural capacity, phi factor was 0.9 because of the very well-known defined behavior of flexure. But in the case of shear, the behavior is not very well known and not defined, very well defined. And the consequences are also very different. In the case of flexure, the consequences are not so catastrophic, because in the case of flexure, we have a lot of control on the failure of beams. We can force the beam to fail in a ductile mode. But in the case of shear, it is not in our control to force the beam to fail in a ductile mode. It can fail in a brittle mode. You have seen this. Okay. So with all this now, you can see phi Pn and phi Mn, because the column is subjected to bending moment. So whenever there is a demand on a member, whether it is a beam or column, so regardless of the demand, whether it is axial or flexure, or the combination of axial and flexure, or shear or torsion, all these must be resisted by the member, and only then it can be declared as safe against all these bending moments. If, for example, there are 4 actions acting on a member, axial, flexure, shear, and torsion, and you are able to design this for only 2 or 1 or 3, so the beam, the member can fail in the against actions for which the member has not been designed. So you should be very careful about this. In the beams, in the case of beams, you have seen that when beams are subjected to transverse loading is a loading which is applied along the perpendicular to the length. So in the beam, if the beam is in this direction, these are the transverse load on the beam. In the case of this transverse loading, shear forces or shear stresses and flexure stresses or flexure movement are produced. In the case of beam, when a beam is subjected to axial transverse load, then bending moments are produced and shear forces are produced. So we have now learned how to design a beam against shear and flexure. However, if this beam has been subjected to torsion, for example, and you leave this torsion design, the beam will be prone to failure against torsion stresses. Okay. So any member of reinforced concrete member must be designed against all those actions to which that member is subjected to. Correct? Okay. In this case, the column is subjected to an axial load, which is Pu, and this Pu is acting as some eccentricity. Okay, so this will produce this eccentricity. To understand the eccentricity, in the last lecture,
we said that if there is an edge column, edge column will produce, edge column will be resisting the unbending moment. You can see that the beam, which is resting on two columns, on two sides, will produce the eccentricity because this beam, if the beam is cut at the midspan, then the beam is to resist the bending moment of the beam must be resisted by the column. But in the case of concentrically loaded column, when the beam is equal span on all sides, or the slab is equal span on sides, there is no unbending bending movement, and there is no eccentricity because the beam which is come from all the slabs on all the sides of equal spans would be perfectly passing to the sun side. So there is no unbending bending movement, and there is no eccentricity. But in this case, there is eccentricity because the bending moment, the column is subject to bending moment, which is an unbalanced bending moment. However, if this beam is continuous past the column and the spans are equal, then this column will also become a case of concentrically loaded column, provided that the beams are of equal spans on both sides of the slab. ठीक, अगर किसी कॉलम के तमाम साइड पे बीम्स और या स्लैब्स बिल्कुल इक्वल स्पेस के और लोड बराबर हो, तो उसमें कोई एक्शन इस किस्म का नहीं आएगा बेंडिंग का, और उसमें जो लोड होगा वो कंसंट्रिकली लोडेड कॉलम होगा, और उस वक्त हम जो लोड है, लोड को हम कंसंट्रिक लोडिंग करेंगे, ठीक है ना। और अगर ये लोड बैलेंस नहीं है, मतलब एक कॉलम है बिल्कुल इस तरह, और इसमें एक साइड पे स्लैब का पोर्शन ज्यादा है, या आपने तो लोड ज्यादा रख दिया और दूसरी साइड पे लोड कम है, ठीक है ना, तो इन दोनों के दरमियान एक अनबैलेंस बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, फर्स्ट जस्टिफाई बाय कॉलम। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो कॉलम गिर जाएगा, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम है और कॉलम नहीं गिर रहा, तो इसका मतलब है कि अनबैलेंस बेंडिंग मोमेंट वही कॉलम देगा, और इस केस में ये लोड कंसंट्रिक नहीं होगा बल्कि लोड एक्सेंट्रिक है। और इस एक्सेंट्रिक लोडिंग की जो एक्सेंट्रिसिटी है उसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं, उसको हम बहुत आराम से मालूम कर सकते हैं। जो लोड मेरे पास, देखिए आपके पास जो अगर दी एग्जांपल में आपको दे रहा हूं कॉलम है और उसके एक साइड पे 10 फुट का बीम है और दूसरी साइड पे 5 फुट का बीम, ठीक है। जब उस पे आप जाहिर है कि 10 फुट वाला बीम ज्यादा है तो उसको इस तरह खींचेगा, तो जो बेंडिंग मोमेंट और वो की बेंडिंग मोमेंट बीम को कॉलम को जरूर एडजस्ट करना चाहिए, अगर एडजस्ट नहीं करेगा तो गिर जाएगा। तो ये आप दोनों से इस वाले 10 फुट के स्पेन से लेट से 10 फुट का लोड आ रहा है और इधर से 5 फुट का लोड आ रहा है, तो टोटल लोड जो कॉलम को रेजिस्ट करना चाहिए वो 15 फुट का लोड 15 फुट का है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट 1 बैलेंस से 5 फुट और 5 फुट बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को, लेकिन 5 फुट एक अनबैलेंस बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट कर देंगे। और आप मालूम कर सकते हैं कि उसके लिए क्योंकि ये कैंटिलीवर है, तो कैंटिलीवर का बेंडिंग मोमेंट आप कैसे मालूम करेंगे, अगर 10 फुट और 10 की टोटल लोड है तो इससे मल्टीप्लाई करें 10/5, तो ये 50 आ जाएगा, और 5/2.5 इससे आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट, और आप दोनों को माइनस करें तो अनबैलेंस बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। हम जो टोटल लोड है 15 के का 15 के मल्टीप्लाई बाय ई एक्सेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय ई इज इक्वल टू दिस अनबैलेंस बेंडिंग मोमेंट, और उसका आप निकालें, ठीक है ना। मैं जरा ये करता हूं ताकि आप लोग एक्सेंट्रिसिटी का कांसेप्ट समझ जाए। So with 1 kip per foot, it will be a 10 kip load here, and you will have a 5 kip load here. Am I right? Okay. And then this distance is how much? 5 foot. So you will have a bending moment here. कितना होगा ये? 50. ठीक है ना? अच्छा, इस साइड पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 12.5। अब ये दोनों बेंडिंग मोमेंट बैलेंस नहीं है, दोनों बेंडिंग मोमेंट बैलेंस नहीं है, और आपको पता है कि स्ट्रक्चर एनालिसिस की बुनियादी रिक्वायरमेंट ये है कि फ्रेम स्ट्रक्चर में या बीम में किसी भी करेक्शन पे, किसी भी पॉइंट पे समेशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट मस्ट बी 0 फॉर ये बहुत जरूरी है। अगर इन नो तो स्ट्रक्चर मतलब बैलेंस नहीं है और स्ट्रक्चर अपनी पोजीशन पे नहीं है, ठीक है जी।
तो अब ये इधर जो बेंडिंग मोमेंट आएगा 50 माइनस 12.5 कॉलम पे, वो कितना होगा? एंड उसका जो डायरेक्शन है वो ऐसे होनी चाहिए, इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि ये बेंडिंग मोमेंट कम है और ये बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है, तो ये इसका डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए और इसका इस एंड पे होना चाहिए। ठीक है ना? ये कितना होगा 50 माइनस 12.5? हाँ जी, 37.5 फुट के। ठीक है जी। लोड इस पर कितना होगा? इस कॉलम पे इस वक्त लोड जो है दोनों से आएगा, इट विल बी 15 किप, है कि नहीं? अच्छा, अब जब मैं एक्सेंट्रिसिटी को समझना और मालूम करना इसलिए जरूरी है कि आगे जो हम डिजाइन शीट इस्तेमाल करेंगे उसमें एक्सेंट्रिसिटी इस्तेमाल हो, वरना ऐसा जिसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। आपने बेंडिंग मालूम कर दिया एनालिसिस में और बेंडिंग की डिजाइन, लेकिन आगे आप देख लीजिए कि कॉलम का डिजाइन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जिस तरह के बीम का डिजाइन। अगर जब आप तरीका सीख लेंगे तो आसान से है, क्योंकि डायरेक्ट यू आर यूजिंग डिजाइन एड इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग रिइंफोर्समेंट योरसेल्फ, लेकिन उतना आसान नहीं है उसका कांसेप्ट और ये जरा मुश्किल है। आज हम उसी पे डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अब ये क्या होगा? PU.E विल बी इक्वल टू 37.5 और ये होगा 15 इंटू E, इससे आप E मालूम करें, नॉट डिफिकल्ट, कोई मुश्किल नहीं है। इसका मतलब है कि ये आप इस कॉलम को ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि इस पे 15 के का लोड इस के साथ रिगार्डलेस ऑफ इसमें एक साइड पे कैंटिलीवर एक साइड पे कैंटिलीवर नहीं वगैरह वगैरह। ठीक है ना? कितना ही आ गया? 2.5 फुट में आ गया। ठीक है। अब इसको आप, अगर मैं इस कॉलम को ऐसे लिख दूं, ये इसका सेंट्रॉइड है ना, मैं इधर लिखता हूं मैं PU और मैं ये E लिखता हूं 2.5 और PU की वैल्यू 15 किप है। तो अब आपको इस बात को जानने की जरूरत नहीं है कि कैंटिलीवर है या नहीं, ये इंफॉर्मेशन किससे देना? PU जो है PU 2.5 फीट पे है, सेंसिटिविटी है और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। if E is 0 इसका मतलब इस जगह का कंसेंट्रेशन if E is 0 और E का कब 0 होगा कि जब आपका ये स्पेन जो है ना लेफ्ट साइड पे, if this span is also 10 feet, if this span is 10 feet then E is 0 because 37.5 will be balanced and there will be 0 bending moment on that. I hope this is clear now. ठीक है। बेंडिंग मोमेंट जो है, बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर अनबैलेंस बेंडिंग मोमेंट है तो वो कॉलम लेगा, वरना अगर कॉलम नहीं लेगा तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर हैज कोलैप्स्ड। ठीक है। जब हम कहते हैं ना कि इस स्ट्रक्चर की एग्जिस्टेंस के लिए इक्विलिब्रियम जरूरी है, तो ये उसका एक डेमोंस्ट्रेशन है। दिस वन ऑफ द डेमोंस्ट्रेशन दैट दी। अच्छा, दूसरा क्या है? कंपैटिबिलिटी। इसका मतलब है ये कनेक्शन जो है, ये कनेक्शन अगर मोनोलिथिक कनेक्शन है तो ये परफेक्टली 37.5 प्रोड्यूस करेगा। तो 12.5 प्रोड्यूस करने के बाद बाकी कॉलम को दे देगा। अगर नहीं दे सकता तो इसका मतलब है कि ये इसमें कंपैटिबिलिटी नहीं है, अगेन स्ट्रक्चर वुड हैव कोलैप्स्ड। ठीक है। मतलब ये कि इसमें लेट्स से कि आपने रिइंफोर्समेंट ऊपर कम डाली इस बीच में, तो उस रिइंफोर्समेंट से क्रैक हो जाएगा तो क्रैक नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि इसमें तो कोई रिडंडेंसी भी नहीं है सिस्टम के अंदर, देयर इज नो रिडंडेंसी। अगर एक साइड का बीम जो है उसमें आपने काट नेगेटिव रिइंफोर्समेंट कम डाला हुआ तो क्रैक आ जाएगा और गिर जाएगा। अनलाइक द केस ऑफ कंटीन्यूअस बीम के केस में दरमियान में जो सपोर्ट होता है, अगर उसके बेंडिंग मोमेंट आप रिइंफोर्समेंट न डालें नेगेटिव में, क्या हो जाएगा? तो क्रैक आ जाएगा एंड दिस विल बिकम द केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम्स, which is not a problem for us. अगर हम शुरू में ये कहते हैं कि मैंने नेगेटिव रिइंफोर्समेंट के लिए डिजाइन नहीं करना और मैं मतलब जो इस पर मैच करेगा तो डिसाइड और उससे होगा क्या? ऊपर एक क्रैक आ जाएगा। तो क्रैक यू कैन रिपेयर और यू कैन ट्रीट द क्रैक। सो ये हम डिसाइड करते हैं, द डिजाइनर डिसाइड्स whether he wants a continuous beam with a negative bending moment when he join or he wants it. But in this case there is no choice. इसलिए अपना पास choice नहीं, क्योंकि आपके पास रिडंडेंसी है। इसका सिर्फ ये कनेक्शन चला गया क्योंकि ये कनेक्शन है इसको कंट्रोल करता है। ये कनेक्शन अगर चला गया तो स्ट्रक्चर इज कोलैप्स्ड। Okay, so this column has to now resist the axial load as well as the
bending moment. And from our concepts of previous lectures, phi Pn design axial capacity must be greater than the ultimate demand, and design flexural capacity must be greater than the flexural demand. Then we can write down the resistance of this column. In this case, there are two rows of reinforcement, one row of reinforcement in this and the other row of reinforcement in this. This is called AS1 and this is called AS2, as we have seen in the case of concentrically loaded column. Okay? So the nominal capacity of this column, when the column is subjected to load, column के ऊपर आप लोड रखते हैं ना, तो उसमें बार भी है, reinforcement भी है और उसके अंदर कंक्रीट भी है. तो अगर ये लोड बिल्कुल कंसेंट्रिकली लोडेड है तो फिर तो परफेक्टली रिइंफोर्समेंट और कॉलम की जो कंक्रीट है वो तो डिस्करी हो रही है कंसेंट्रिकली लोडेड कॉलम के हमारी भी कंस्ट्रक्शन है. लेकिन अगर ये बेंड हो रहा हो, अगर ये बेंड हो रहा हो तो इसके एक साइड पे टेंशन आएगा, दूसरी साइड पे कंप्रेशन आएगा. अब आप देखिए इसमें जरूरी बात, जब कॉलम में से बेंड होगा और उसके ऊपर एक लोड भी लगा हुआ ताकि दोनों को अलग अलग डिजाइन भी करें. ये बात याद रखिए कि आप एक लोड को अलग और बेंडिंग मोमेंट को अलग कंसीडर करके डिजाइन करवाएं. क्यों? आप देखें मेरी तरफ से, जब कॉलम में से बेंड होगा ना उसके ऊपर एक लोड भी लगा हुआ है तो ये कंप्रेशन बढ़ाएगा इस साइड पे, इस साइड पे कंप्रेशन बढ़ाएगा और दूसरी साइड टेंशन को कम करेगा क्योंकि कंप्रेशन और टेंशन आपस में अपोजिट साइन करते हैं. तो जब कॉलम में से बेंड को बेंड होगा उसके ऊपर एक लोड भी लगाओ तो ये कंप्रेशन बढ़ा देगा, लेकिन इस टेंशन को कम कर देगा, इस टेंशन को कम कर. तो एक्सियल लोड का फायदा है. अगर सिर्फ बेंडिंग मोमेंट हो, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट कैसे हो सकता है? एक्सियल लोड ना हो बेंडिंग मोमेंट हो. द केस ऑफ टी में आप देखिए ट्रांसफर फ्लो लगा हो, यानी इस कॉलम पे लोड ऊपर से नहीं है बल्कि साइड से बिल्कुल दरमियान में से, तो ये बेंडिंग मोमेंट तो प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन एक्सियल लोड कोई नहीं. लेकिन जब तक कॉलम के ऊपर से लोड आएगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि कॉलम पर सिर्फ बेंडिंग मोमेंट और एक्सियल लोड नॉट पॉसिबल. फिजिकल स्ट्रक्चर में किसी कॉलम के ऊपर से लोड आ जाए और उसमें से लोड ना हो ये नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर का लोड का मतलब के कारण कैसे सीखोगे. लेकिन अगर साइड से लोड हो, साइड से लोड जिस तरह की बीम के केस में ट्रांसफर फ्लो ये, लेकिन कॉलम के केस में ट्रांसफर फ्लो किस तरह टू के अलग से लोड है. इस केस में मुमकिन है कि बेंडिंग मोमेंट जब बेंडिंग मोमेंट सिर्फ एक्सियल लोड के बगैर हो तो ये डेंजरस केस है या कि बेंडिंग मोमेंट एक्सियल लोड के साथ हो, ये डेंजरस केस. व्हिच वन इज द डेंजरस? without axial load, क्योंकि आप बीम को जरा इमेजिन करें, जब बीम पे आप बीम को आप ट्रांसवर्स लोडिंग अगेंस्ट बेंडिंग मोमेंट आप ताकत तो नीचे टेंसाइल से जा जाएंगे और ऊपर कंप्रेसिव से जा जाएंगे. लेकिन जब इस बीम को आप कंप्रेस करेंगे दोनों साइड से, तो कंप्रेस करेंगे तो ऊपर का जो कंप्रेशन फ्लेक्चर पार्ट का है कंप्रेस बोल्ट तो उसका कंप्रेशन बढ़ जाएगा और नीचे टेंशन कम होगा क्योंकि कंप्रेशन और टेंशन को कैंसिल करेंगे. तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल. ये भी मुमकिन है कि हम एक सेल लोड इतना लगा दें टेंशन को कंप्लीट करें और बीम जो है टेंशन फ्री हो जाए. ठीक हो जाए. दिस इज अ काइंड ऑफ टेक्निक व्हिच इज यूज्ड इन प्री-स्ट्रेस कंक्रीट. प्री-स्ट्रेस कंक्रीट का अगर आपने नाम सुना तो प्री टेक्निक इस्तेमाल. अभी हम जो बात कर रहे हैं इसमें एक सेल लोड ऊपर से आएगा और एक सेल लोड हमारे कंट्रोल में नहीं है. जो सिस्टम है यानी कॉलम सिस्टम में लगा हुआ है तो उस कॉलम के साथ जो बीम्स लगे वो इसको बेंडिंग मोमेंट देंगे एंड नॉट अराउंड कंट्रोल, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. उस एक्सियल लोड और बेंडिंग मोमेंट से अब कॉलम में एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस होगा. क्या होगा? देयर बी द कॉलम विल बी सब्जेक्टेड टू स्टेट ऑफ स्ट्रेस. समझ में आया? और वो स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या है? एक एक्सियल लोड है और एक बेंडिंग मोमेंट है. तो अब एक्सियल लोड और बेंडिंग मोमेंट के म्यूचुअल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है केस में स्टेट ऑफ स्ट्रेस किस तरह. अगर एक्सियल लोड इस तरह है कि बेंडिंग मोमेंट बहुत कम है जिसने कंप्रेशन प्रोड्यूस किया और टेंशन बहुत कम, और एक्सियल लोड ज्यादा है टेंशन खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगा, लेकिन कंप्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, कंप्रेशन से बहुत बढ़ जाएगा. और कंप्रेशन में आपने देखा है कि कंक्रीट का कॉलम जो है बहुत जबरदस्त बिहेव करता है. ठीक है ना? लेकिन अगर बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है और एक्सियल लोड कम है तो टेंशन होगा. तो इसके इनफाइनाइट केसेस बन सकते हैं. इट कैन बी इनफाइनाइट केस. हमें कुछ पता नहीं ये कौन सा केस होगा. अगर चेक कोई कॉलम अगर किसी सिस्टम में मौजूद हो तो उसमें वैसे एक यूनिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस होना चाहिए, एक यूनिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस होना चाहिए. लेकिन मसला ये है कि किसी बिल्डिंग में किसी एक वक्त में तो एक यूनिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो सकता है
लेकिन किसी दूसरे वक्त में किसी दूसरा सेट ऑफ स्ट्रेस हो सकता है। मसलन डेड लोड तो हमारे डेड लोड देखते हैं मतलब आधा दिन तो फिर उसी के एक वीक सेट ऑफ स्ट्रेस आ गया और पता है कि इसमें कंप्रेशन, लेकिन लाइव लोड के डिस्टर्बेंस की वजह से उसके सेट ऑफ स्ट्रेस चेंज हो जाएगा। और लाइव लोड के इतने इनफाइनाइट डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि हमारे लिए नामुमकिन है कि हम किसी कॉलम में कॉन्फिडेंटली कह सकें कि इस वक्त इसमें कौन सा स्टेट ऑफ स्ट्रेस है। अनलाइक बीम्स में बिल्कुल हमें 100% पता है। बीम में पता है कि टीचर टेंशन और कंप्रेशन मुमकिन नहीं है कि बीम में टेंशन का ये मुमकिन नहीं। टेंशन नीचे होगा, कम या ज्यादा हो सकता है लाइव लोड पे, कभी कभी कम होगा और अल्टीमेटली जब डिजाइन कर तो आप सेफ साइड। लेकिन कॉलम के केस में नो वी कांट डिटेक्ट। एक ये मसला है कि ग्रेविटी लोड के बारे में, लेकिन जब अर्थक्वेक लोड आएंगे तो अर्थक्वेक लोड में तो बिल्कुल हमें कुछ पता नहीं होगा कि इसमें कौन सा स्टेट ऑफ स्ट्रेस होगा। अर्थक्वेक लोड जब इसको शेक करेगा और उसको हिलाएगा तो उसमें जब ये इधर जाएगा तो उसमें टेंसाइल डायग्राम में इधर उधर से सब कुछ उलट हो जाएगा। और अगर इस डायरेक्शन में भी हो तो फिर एक कंसंट्रेटिकली लोडेड कॉलम जो हमने स्टडी किया था वो भी उसमें भी बेल्ट मूवमेंट आ जाएंगे, इससे बेल्ट मूवमेंट आ जाएंगे। तमाम कॉलम जो पहले हमने लिए थे कि वो कंसंट्रेटिकली थे, एज कॉलम था, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा मैंने कॉलम में सब्जेक्ट लोड है। तो ये कॉलम के लिए मुमकिन नहीं है कॉलम के डिजाइन में कि हम एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस हम कह दें कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस यूनिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस दे दें। तो जब ये नहीं है तो देन वी कैन नॉट डिजाइन द कॉलम विद द करेक्ट अमाउंट। अब हमें टेक्निक जो है इसका चेंज करना पड़ेगा। उसमें उसको समझने के लिए सबसे पहले आप देखें कि नॉमिनल कैपेसिटी किसी कॉलम के अगर मैं मालूम करना चाहता हूं तो मुझे एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस से डील करना पड़ेगा। एक पूरा कॉलम कंप्रेशन में है, पूरा कॉलम टेंशन में तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कंप्रेशन। अगर पूरा कॉलम टेंशन में इसका मतलब है कि कॉलम का कपल है खत्म हो चुका है और कॉलम में फ्लैश, क्योंकि कॉलम में कपल का होना जरूरी है। क्योंकि ब्रेडमेंट जब कॉलम पे ब्रेडमेंट आएगा तो उसका इंटरनल कपल इसको बैलेंस करेगा। अगर इंटरनल कपल नहीं है तो इसका मतलब है कॉलम नुकसान, ठीक है ना। तो एक साइड पे कंप्रेशन और दूसरी साइड पे टेंशन होना जरूरी है। लेकिन फिर कितना टेंशन है, कितना कंप्रेशन है, पूरा सेक्शन कंप्रेशन में है और फिर कंप्रेशन की वैल्यू फ्रंट एंड पे और बैक एंड पे कितनी है वी डोंट नो। तो वी एज्यूम स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो है एज्यूम स्टेट ऑफ स्ट्रेस। आप देखें टू द राइट साइड, दिस इज एन एज्यूम्ड स्टेट ऑफ स्ट्रेस। अंडरस्टैंड, ये एक एज्यूम स्टेट ऑफ स्ट्रेस है। हम तो कोई स्टेट ऑफ स्ट्रेस तो हम एज्यूम करेंगे ना, तो हमने एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस एज्यूम किया जिसमें हम ये कहते हैं कि एक एंड पे कंप्रेशन है क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट है, अब और दूसरे साइड पे टेंशन है। और इस वक्त जो हमने नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ रिइंफोर्समेंट एज्यूम की वो 2 हैं। अगर 3 होंगे तो एक और लेयर इधर आ जाएगा और उसका भी एक एक्शन। अब अच्छा, अब इसमें नॉमिनल कैपेसिटी कैसे निकलेगी? नॉमिनल कैपेसिटी बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। आप लेकिन उसमें पूरे का पूरा सेक्शन कंप्रेशन, इसमें पूरा सेक्शन कंप्रेशन नहीं। फ्रंट एंड या अगर इसको मैं फ्रंट एंड के तो कंप्रेशन है, लेकिन बैक एंड टेंशन है। तो कंप्रेशन वाला पार्ट जो है अगर उसको मैं प्लस साइड के साथ लिखूं तो नॉमिनल कैपेसिटी मेरी कैसे आएगी? नॉमिनल कैपेसिटी जो है ये CCE पार्ट जो है, दिस पार्ट इज इन कंप्रेशन, तो दिस विल बी CS एंड देन द जो इसका ये पार्ट है जो कंप्रेशन में है, जो कंप्रेशन ब्लॉक डेप्थ है, इसका CC और ये वो आपको पता है 0.853 प्राइम इनटू ये स्मॉल a इनटू द साइड ऑफ द कॉलम इन दिस डायरेक्शन में कॉलम का साइड इससे CC निकलेगा। और ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, AS1 FS1 दैट FY, ठीक है। और इस केस में ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये इसका साइन डिफरेंट है, ये CC और CS ऊपर है और ये नीचे की तरफ, तो ये माइनस क्यों हो जाएगा। तो नॉमिनल कैपेसिटी अगर किसी कॉलम की निकालेंगे, नॉमिनल कैपेसिटी एक्सियल कैपेसिटी, नॉमिनल एक्सियल कैपेसिटी उस कॉलम की जो इसमें एक्सियल बेंडिंग भी हो तो वो ऐसे निकलेगा। अगर इसमें आप एक्सियल बेंडिंग 0 कर दो तो पूरा का पूरा सेक्शन इधर कंप्रेशन में चला जाएगा और -T का साइन खत्म हो जाएगा, इधर एक और CS आ जाएगा जो कि कंसंट्रेटिकली लोडेड के कॉलम के केस में हमने डिस्कस किया। अच्छा, अब आप इसमें CC और AS और AS1 और AS2 की वैल्यूज आप डाल दें तो आपके पास नॉमिनल phi pn की एक इक्वेशन आपके पास फाइनली आ जाती है, जिसमें अगर हम अच्छा इसमें हमने एक assumption हमने की है। लुक एट दिस, वी हैव सेड दैट AS1, इसको याद रखें, AS1 इज इक्वल टू AS2 टू TS का क्या मतलब है कि मतलब ये है कि दोनों फेसेस ऑफ द कॉलम पे रिइंफोर्समेंट हमने बराबर ली हुई, ठीक है ना। दोनों फेसेस पे दोनों साइड्स पे रिइंफोर्समेंट बराबर है। अगर ये बराबर ना हो तो AS1 AS2 के बराबर नहीं हो सकता।
तो ये एक assumption है जो हम कर रहे हैं, ये एक assumption है। जब ये assumption हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो A इसमें निकालूंगा फाइनली उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, उसको मैं नहीं करूंगा 3 0 डालूं 2 डालूं, तो मैं इसी बेस पे ये डेरिवेशन कर रहा हूं, ठीक है जी। जब ये AS1 और AS2 in this equation when they are equal, so they can be taken out, AS निकल जाएगा और FS1 और FS2 इसमें रह जाएंगे, FS1 minus FS2, ठीक है। और ये 5Pn must be greater than or equal to Pu, at least it should be equal to P. So this is one equation. What are the unknowns in this equation? Unknowns, नहीं बी तो साइज कॉलम का साइज है ना, साइज तो हमें पता है, साइज तो हमें जूम कर लेंगे। स्मॉल a is unknown to us, कंप्यूटर ब्लॉक डेटा हमें पता नहीं है कितना है, a पता नहीं है हमें, और FS1 FS2 पता है, तो there are 3 unknowns। FS1 FS2 पता नहीं है। आप अगर कंस्ट्रक्टिव इरोडेड कॉलम का केस देखते हैं तो उसमें पूरे का पूरा सेक्शन रिइंफोर्समेंट और कंक्रीट सब एक ही डिफॉर्मेशन में या स्टैंड में नीचे आ रहे हैं, और उसमें हमने कहा कि इसमें जब फंडामेंटल कुर्सी पर हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि कॉलम फेल हो। तो उसमें स्टील तमाम स्टील जिधर भी पड़ा हुआ है स्टील वो शीट को प्लस करके ही उसमें एफएस क्वांटिफाई के बराबर ले सकते। इस केस में पता ही नहीं है, इस केस में हमें पता नहीं है हम FS1 को FY के बराबर कैसे ले सकते हैं, वी डोंट नो कि हमारा FS1 जो है वो यील्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, नॉमिनल कैपेसिटी, अगर हम इसके नॉमिनल कैपेसिटी मालूम करेंगे तो अनलाइक द केस ऑफ बीम, we will now take relative movement of these forces, different forces on the compression side and tension side about the centroidal axis. इसके बेंडिंग मोमेंट जो है हम सेंट्रोइडल एक्सिस पे लेंगे। ये आप इसको गौर से आप देख रहे हैं, ये सेंट्रोइडल एक्सिस है ना, ठीक है। अगर मैं AS1 जो कि AS1 FS1 है, यानी इसका तो मैं एक बेंडिंग मोमेंट लूंगा तो दिस विल बी द, इसका जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना है, d माइनस डी प्राइम, सॉरी h/2 माइनस डी प्राइम, दिस h/2, ये टोटल h/2 है, इसमें से ये निकाल देंगे तो इस h/2 माइनस डी प्राइम। सो फॉर AS1 जो कि मेरे पास असल में है CS, ये CS है, CS दिस वाज दिस बिकॉज़ दिस इन कंप्रेशन, तो ये CS फोर्स का जो है, CS फोर्स का ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस व्हिच इज h/2 माइनस डी प्राइम। अच्छा, अब कंप्रेशन CC का जो डिस्टेंस है सेंट्रॉइड से वो ये है, CC ये है। मेरे पास जो इस वक्त इसकी टोटल डेप्थ है तो वो A है, तो ये हाफ A/2 हो जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस इधर तक h/2 है, तो h/2 में से आप A/2 निकाल देंगे तो ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा, तो दिस विल बी लाइक दिस। और T जो है T इस साइड पे है, T का ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा, अगर टोटल ये h/2 है तो ये h/2 माइनस डी प्राइम हो जाएगा क्योंकि ये भी डी प्राइम है, तो CC h/2 माइनस डी प्राइम दिस 5n must be greater than or equal to mu, at least equal to mu। अच्छा, आप CC की आप वैल्यू डालें, ये असल में इधर है 0.85 C प्राइम, लेकिन चूंकि h/2 है इधर तो वो 2 इस पे मजीद डिवाइड करके इसको 0.425 कर देगा, यानी 0.85 डिवाइड बाई 2, तो ये 0.425 C प्राइम हो जाएगा AB, और H माइनस A हो जाएगा। और ये h/2 माइनस डी प्राइम जो है ना, दोनों इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, h/2 माइनस E कॉमन ले लेंगे, h/2 माइनस डी प्राइम जो हम कॉमन ले लेंगे तो CS प्लस T हो जाएगा, और CS है AS1 FS1 और T है AS2 FS2। जब उसमें से आप AS बाहर निकाल देंगे तो ये FS1 प्लस FS2 इस फॉर्म में आ जाएगा। ये हमारे पास है, इसमें कितने अननोन है, अगेन देयर आर 3 अननोन, स्मॉल a AS FS1 अगर FS1 FS2 को हम एक अननोन मान लें तो ये 3 अननोन है, वरना 4 अननोन, एंड वी हैव ओनली 2 इक्वेशंस, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन द नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है ना। जबकि प्रीवियस केस में बीम के केस में क्या था, बीम के केस में देयर आर 2 अननोन्स एंड 2 इक्वेशंस, ठीक है ना, 2 अननोन्स एंड 2 इक्वेशंस। उसमें हम इसलिए एक एज्यूम करते हैं और साइकिल चलाते हैं, इसमें वो इस तरह का साइकिल काम नहीं करेगा। सो व्हाट हैपेंस नाउ, these are the equations 5Pn and 5Mn। अच्छा, these equations have been derived for only 2 layers of reinforcement. If there are 3 or 4 layers of reinforcement,
the equation will definitely change. Okay, now let's try how can we solve these two equations. Finally, you will see that it becomes Very difficult and challenging even to design one B file in this concept. We will use another concept which is much easier than this. लेकिन पहले आपको सिर्फ समझाने के लिए कि इसमें मसला क्या है. लेट्स से कि हम fs1 fs2 को मालूम करना चाहते हैं, क्योंकि fs1 fs2 इसमें मेन मसला है कि वो यील्ड पे हैं या किस पे हैं. तो वो fs1 के लिए अगर हम इक्वेशन लिख दें तो हमारे पास एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है और एक इसके अंदर वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल. तो विद टू ट्राइंगल्स, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से हम इक्वेशन लिखना चाहते हैं. तो EU डिवाइड बाय C हो जाएगा, विच इज दिस थिंग. EU हमें पता है कि कंक्रीट हमेशा फेल होगा, तो EU 0.003 होगा कंप्रेशन साइड पे. तो दिस इज नोन टू अस. 0.003 दिस इज नोन टू अस, बट C इज नॉट नोन टू अस. तो C आ जाएगा. अच्छा, अब इसके अंदर जो छोटा ट्राइंगल है, छोटा ट्राइंगल, तो इसमें ये डिस्टेंस हमें पता है, ये D प्राइम है. दिस इज D प्राइम. तो ये होगा C माइनस D प्राइम. और इधर जो स्ट्रेन होगा वो स्ट्रेन होगा ES1, यानी स्ट्रेन इन स्टील एट लेयर 1, और ये डिवाइड बाय C माइनस D प्राइम. ठीक है ना, समझ गया. एक बड़ा ट्राइंगल है ये वाला, ये बड़ा ट्राइंगल जिसमें ये 0.0003 है और ये C है. तो इस ये दिस डिवाइड बाय दिस थिंग डिवाइड बाय दिस इज दिस. और छोटा ट्राइंगल जो इसके अंदर है, तो ये स्टील का, ये इस स्टील का है, तो ये D प्राइम पे है. तो ये होगा किस तरह, ये होगा ES1 यानी स्ट्रेन इन स्टील एट लेयर 1, और ये डिस्टेंस जो है ये C माइनस D प्राइम, क्योंकि ये टोटल ये D प्राइम. तो ES1 डिवाइड बाय C माइनस D प्राइम इज इक्वल टू EU डिवाइड बाय C. इससे मेरे पास, तो ये अगर आप खुद लिख लें, टू राइट डाउन दिस थिंग्स, ये बेहतर है कि आप लिख लें ताकि आपको आसानी हो. FS1 की फाइनल इक्वेशन को अगर आप देखें तो इसमें मारूफ का राशिस ऑफ C तो हमें पता है, और P हमें पता है 0.003 और D प्राइम भी हमें पता है. क्या आप स्टील डाल नहीं पता है, लेकिन C हमें पता नहीं. C इसमें न्यूक्लियस जब जो है वो अननोन. अब जरा FS2 हम देख लें. FS2 विल बी लाइक दिस. इसमें ये ट्राइंगल हमारा जो है, ये वाला ट्राइंगल, इसका डिस्टेंस कैसे हम निकालेंगे. ये डिस्टेंस, ये टोटल जो है हमारे पास D है, तो इसमें C निकालने तो ये डिस्टेंस निकल आएगा D माइनस C. और कंपेयर हम दोबारा इस ट्राइंगल से करते हैं. EU डिवाइड बाय C और ES2 डिवाइड बाय D माइनस C. इससे आप FS2 निकालें. अगेन आपके पास सिर्फ C एक अननोन रह जाएगा,
वो fs1 fs2 जो कि बेसिकली दो अननोन थे उसमें एक ही अननोन है सी fs1 fs2 अगर दो अननोन नजर आ रहे हैं हमें लेकिन इसमें चूंकि सी अगर मालूम हो जाए तो fs1 fs2 दोनों मालूम हो जाएंगे लिहाजा अननोन इज ओनली सी ओके Okay, let's try to design column by trial and success method as we have tried in the case of beams. As discussed in the previous lecture, the singly reinforced flexure member can be designed by trial and success method using following formula. AS is equal to this and A is equal to this. In the same way, equations 1 and 2 may be used for the design of RC but subjected to compression load with a uniaxial bending like this. So we have two equations 1 and 2. अच्छा अब अगर आप देखें how many unknowns are there now in equation 1? कितने unknowns हैं equation 1 में? जी कौन से हैं? A can also be expressed in terms of C. Small a जो है उसको भी in terms of C लिख सकते हैं ना? तो अगर A को हम in terms of C लिख दें, अगर A को हम in terms of C लिख दें, तो इसका मतलब है कि एक unknown C है और दूसरा unknown AS है. MU की इक्वेशन में देखिए. अब हमारे पास unknown दो हो गए और इक्वेशन भी दो. तो अब theoretically speaking we should be able to solve this equation. ठीक है, theoretically speaking. अगर ये एक पेवर थ्योरी का क्वेश्चन होता तो हम इसको सॉल्व कर लेते. लेकिन ये पेवर थ्योरी का क्वेश्चन नहीं. इसमें एक बुनियादी रिइंफोर्स कंक्रीट के मैकेनिक्स में एक बुनियादी assumption हमने की है. वो assumption क्या है कि fs1 fs2 में जो स्ट्रेस आएगा वो यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा नहीं होगा. जबकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है. इस इक्वेशन में आपके कंट्रोल क्योंकि इस इक्वेशन को अगर आप इन टर्म्स ऑफ सी लिखते हैं तो आप इसको एक सी की वैल्यू दूसरे में डाल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में आप इसको लिख सकते हैं. You will end up in with a quadratic equation. Quadratic equation में जब आप अंदर से c मालूम करेंगे और fs1 fs2 तो वो आपको ये नहीं बता सकता कि fs1 fs2 की दो टुकड़ा या नहीं. वो fs1 fs2 की जो वैल्यू उसको c से आएगी वो आपको दे देगी. तो theoretically तो ठीक है. लेकिन जो assumption हमने की है रिसोर्स कंक्रीट मैकेनिक्स में fs1 fs2 किसी भी वक्त यील्ड स्ट्रेंथ से उसमें स्ट्रेस ज्यादा हम नहीं लेंगे. अगर उसमें यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा स्ट्रेस आ रहा हो तो हम उसको यील्ड स्ट्रेंथ के बराबर ही लेंगे. ठीक है ना. उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि अगर fs1 fs2 में स्ट्रेस रेट से 90 के साथ आ गया तो 90 तो है ही नहीं उसके अंदर. 90 तो है ही नहीं. उसमें तो 60 है या 40. तो जब आप 90 ले लेंगे तो आपके पास नंबर आवाज कम आएंगे. है 90 तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा तो आप कैसे लें? तो इसी इक्वेशन में एक कंडीशन लगती है. ये कंडीशनल इक्वेशन है. आप मैथमेटिक्स में शायद ये पढ़ा हो. ठीक है, कंडीशन को कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं. यानी ये कंडीशनल इक्वेशन ठीक है but provided that fs1 fs2 to have a limit and the limit for fs1 fs2 is such that they can never be greater than 60 or 40 KSI. आप जब ये कंडीशन आप इसके अंदर लगाएंगे तो फिर आप इक्वेशंस को सिंपल मैथमेटिकल तरीके से हल नहीं कर सकते. क्योंकि हर दफा हल कर सकते हैं आप, लेकिन हर दफा जब आप सी मालूम करेंगे आप इसको कैसे कर सकते हैं? ए से अज्यूम करो सी मालूम करें. ए से जिस तरह हम बी के केस में करते हैं. लेकिन जब आप ए सी अज्यूम करके सी मालूम करेंगे या सी अज्यूम करके ए मालूम करेंगे तो हर दफा आप fs1 fs2 को चेक करेंगे कि इसका तो इसमें स्ट्रेस के यील्ड से ज्यादा नहीं हुआ है. अगर ज्यादा हुआ हो तो आप कम ले या तो आप 60 के बराबर. लेट्स से कि मैंने कोई वैल्यू अभी मैं एक एग्जांपल करूंगा आपके सामने. लेट्स डू दैट एग्जांपल. However, unlike equation for beam where fs is equal to fy, here we don't know value. अच्छा, beam के केस में हमने इसको कैसे इंश्योर कर दिया था कि fs हमेशा लीड पे हो. beam के केस में हमने कैसे इसको इंश्योर कर दिया था कि हमारा स्टील होगा ये हमेशा लीड होगा. आपको पता है? मैं आपको बताता हूं हमने कैसे किया. हमने उसमें एस्पेक्ट्स का लिमिट सेट किया. एस्पेक्ट्स का लिमिट हमने निकाला कैसे था? हमने कहा था कि स्टील में स्ट्रेन की वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 0.005 मिनिमम. और उसका हमने एएस मालूम किया था जिसको हमने एस मैक्स कहा था. और हमने कहा था कि इससे ज्यादा हम नहीं डालें.
जब आप उससे कम स्पीड डालेंगे तो आपका स्टेम 0.005 से जरूर ज्यादा होगा, उससे कम 0.003 सही है, 0.02। इसका मतलब है कि हर केस में यील्ड होगा। अगर आप एएस के इसमें से ज्यादा ले लेंगे ना, अगर आप एएस के इसमें से ज्यादा ले लेंगे तो फिर आपका स्टेम स्टील में 0.005 से कम होगा, फिर भी यील्ड तो होगा, यील्ड से फिर भी ज्यादा है, लेकिन इसे कोर्स के अंदर एक्सेप्ट करते हैं। तो हम बीम में इसको ऐसे इंश्योर करते हैं कि हम स्ट्रेन 0.05 पे एज्यूम करके एस्पेक्ट मालूम करते हैं और फिर हम कहते हैं कि एएस हमेशा एस्पेक्ट से कम होना चाहिए। तो आप जब कम से ज्यादा लेंगे तो हम स्ट्रेन ज्यादा आपको देगा, और ज्यादा स्ट्रेन का मतलब यूज है, तो उसमें तो हमें पता है 100%, इस तरह पता नहीं, ये हमारे कंट्रोल में अब नहीं है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, FS1 का ये हमारे पास इक्वेशन है और FS2 की इक्वेशन है, और दोनों केसेस में यूजेड से कम होना चाहिए। अच्छा, अब हम इक्वेशन 1 को इन टर्म्स ऑफ सी लिखते हैं। इक्वेशन 1 को आप देखें, इक्वेशन 1 दिस हैज बीन रिटन इन टर्म्स ऑफ सी, ये a स्मॉल a है, बीटा 1c, दिस इज FS1 एंड दिस इज FS2, करेक्ट। सॉरी, ये स्ट्रेन है, E के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये FS बनेगा, तो ये स्ट्रेन और ये स्ट्रेन, तो ये FS, तो मतलब C। अब हमारे पास इसमें अननोन जो है, अननोन वो हमारे पास C और A, इस तरह के बीम के केस में हमारे पास स्मॉल a और a है, C और A, ठीक है। नेक्स्ट केस में हमारे पास equation 1a can be transformed into quadratic equation to obtain the value of C for a particular demand PU। हम इसको, अब ये इक्वेशन है हमारे पास, इसमें C स्क्वायर आ जाएगा, इसमें C स्क्वायर आ जाएगा, हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में ऐसे लिख सकते हैं, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप a से क्यूब कर तो आप C निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब इसकी आप निकालेंगे ना, तो ये इसकी आपको ये श्योरिटी नहीं देगा कि FS1 FS2 F5 से ज्यादा है या नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो अगर गलत है तो फिर आपको दूसरा ए से जूम करना पड़ेगा, तो अगर फिर भी गलत है तीसरा जूम करना पड़ेगा, एंड फिर थर्ड जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप छोटा सा एक प्रोग्राम तो बना सकते हैं, कोड, लेकिन मैनुअली आप एग्जामिनेशन में यू कांट डू दिस। एग्जामिनेशन में एलिमेंट डिजाइन आप आउट ऑफ क्वेश्चन कि एक कॉलम की डिजाइन में पूरा दिन लगेगा, तो नहीं हो सकता। 100-200 कॉलम हम डिजाइन करते हैं तो मुमकिन ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता है। आपको आप इसके लिए एक एक्सेल शीट बना सकते हैं, इसमें आप उसके ऊपर कंडीशन रखें कि FS1 FS2 मुझे इसी की वो वैल्यू दे दो, इसमें FS1 FS2 वैल्यू दी डाला, यू कैन डू दिस, लेकिन मैनुअली आप ये नहीं कर सकते। अच्छा, फिर आगे आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन नहीं है, आपके पास दूसरी इक्वेशन भी है, दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर हम एज एन एग्जांपल हम एक वैल्यू ले लेते हैं m = 40 फुट के PU ये है, और ये सारा हमने C निकाल दिया, हमने C निकाल दिया इसी कोई अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए, तो C मेरे पास आया 6.08 इंच। अब C 6.08 इंच के लिए मैं FS1 को देखता हूं, FS1 को मैंने जब देखा तो 51 के अंदर जो इस्तेमाल हुआ है ना, अंदर तो इस्तेमाल, अब अंदर तो FS1 है ना, तो अंदर FS1 जब C की वैल्यू 6.08 इंच पे लेता हूं, तो अंदर FS1 की जो वैल्यू इसने कैलकुलेशन में इस्तेमाल की 51 के साइड, क्योंकि गलत 40 के साइड में चाहिए, FS2 की वैल्यू 49 के साइड, जो बिल्कुल गलत। मैं क्या करूंगा, अनदर वैल्यू आपके, और इस तरह मैं दूसरा C निकालूंगा। तो ये काफी मुश्किल काम है। इट मींस दैट एवरी टाइम व्हेन वी ऑब्टेन वैल्यू ऑफ C वी हैव टू चेक द स्ट्रेसेस इन स्टील एंड ओनली that value of C will be used when FS1 and FS2 are less than or equal to F5. Therefore, this method of trial and success will not work in members subject to axial load and flexible together. We now look at another approach. Now, इधर तक तो बात बताऊं कि ये काम हमारे बस का नहीं है। एक्चुअली में 2 जियोग्राफी रिपोर्ट है ना, कॉलम में 3 4 5 जियोग्राफी रिपोर्ट है, उसके तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एक और अप्रोच है जो करते हैं, जो कि इससे बहुत आसान है, and that approach is कि instead of calculating C, अब पहले केस में हमने C कैलकुलेट किया था, हम C कैलकुलेट नहीं करते बल्कि हम C एज्यूम करते हैं। हम C एज्यूम करते हैं और उस C से हम FS1 FS2 निकालते हैं इस तरह, और वो FS1 FS2 की वैल्यू का 40 से ज्यादा तो मैं 40 से कम देते हैं, यानी 40 लेकर अगर 40 से कम है तो फिर तो ठीक, फिर तो मसला नहीं, यानी F5 से कम ग्रेड 40 के केस में अगर वो 40 से कम हो तो फिर तो ठीक है, वही तो उसकी वैल्यू है। लेकिन अगर ज्यादा है तो मैं उसको F5 के बराबर लेके FS1 FS2 की वैल्यू को
मालूम करूंगा और वो से मैं फाइव मालूम करूंगा इंस्टेड ऑफ सी। मालूम है आप, और फिर इसी तरह से फाइव मैंने भी मालूम कर दूं कि फाइव में मालूम कर सकता हूं। मेरे पास सी आ गया, सी मैंने जूम किया हुआ है, ए भी मैंने जूम किया हुआ है, एफ1 एफ2 मैंने मालूम कर लिए, मैं फाइव और फाइव मैंने इसको मालूम कर दूं। अब आप देखिए स्टोरी को आसान करूंगा। ए मैंने जूम किया 0.8 स्क्वायर इंच, FC prime is equal to 3 KSI, FY 40 KSI, B equal to this and D, सब कुछ मेरे पास है कि नहीं। अब मैं C मेरे पास नहीं है, तो C में मैं एज्यूम करता हूं, आई विल एज्यूम द वैल्यू ऑफ C इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है जी। और हर C के वैल्यू के लिए मैं 5PN मालूम करूंगा। कॉलम का साइज तो मुझे पता है 12 बाई 12 का कॉलम है, तो मुझे पता है C मैंने एज्यूम किया और मैंने 5PN मालूम किया और 5N मालूम किया। लेकिन हर दफा जब मैं F1 F2 मालूम करता हूं C की वैल्यू से, तो जब मुझे FY से ज्यादा एफ मिलता है तो उसको FY करा, और अगर कम मिलता है तो मैं वो इसमें डालता हूं। तो मतलब कोई इसमें मसला नहीं है। F1 and F2 are always less than or equal to FY, वो मैंने 5PN और 5N मालूम कर लिया। अब इन दोनों को मैं प्लॉट करता हूं। I will plot now 5PN 5MN इस तरह से। इसको जरा प्लॉट करें, आप जरा प्लॉट करें, प्लॉट प्लीज आप प्लॉट करें जरा इसको। y एक्सिस पे हमारे पास 5PN है और x एक्सिस पे हमारे पास 5MN है। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन है, आप सोचें इस पे। द क्वेश्चन इज कि वेदर दिस कर्व रिप्रेजेंट डिमांड और कैपेसिटी। ये कर्व जो है ये मुझे कैपेसिटी दे रहा है कि डिमांड दे रहा है? दिस कर्व इज बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? हाँ जी, 5PN क्या चीज है? व्हाट इज 5PN? डिजाइन एक्सियल कैपेसिटी, ठीक है। एंड 5MN इज डिजाइन फ्लेक्सर कैपेसिटी। तो ये कैपेसिटी है, डिमांड नहीं है। तो इस कर्व को मैं कॉलम की कैपेसिटी कर्व कह सकता हूं या नहीं? दिस इज द कैपेसिटी कर्व ऑफ कॉलम आर नॉट? ये कॉलम की कैपेसिटी कर्व है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? ठीक है, दिस इज द कैपेसिटी कर्व ऑफ ए कॉलम। और कौन से कॉलम की है? उस कॉलम की जिसके लिए मैंने ये डेवलप किया है, उसमें रिपोर्ट भी मैंने एज्यूम की, साइज भी एज्यूम किया। तो एक पर्टिकुलर कॉलम की
साइज और रिइंफोर्समेंट को अगर मैं इंज्यूम कर तो मैं कैपेसिटी कर्व को प्लॉट कर सकता हूं। समझ रहे हैं आप? अच्छा, एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व मीन व्हाट? अगर मैं इस पर एक पॉइंट मार्क करूं तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर इस कॉलम की एक्सियल कैपेसिटी कितनी है और फ्लेक्सिबल कैपेसिटी कितनी है ये नहीं। अब अगर इसके ऊपर डिमांड आ गया, मेरे पास इस कमरे में 10 कॉलम लेट्स से, और हर कॉलम के मुझे पीयू और एमयू पता है, और वो तमाम के तमाम पीयू और एमयू मैं इसका प्लॉट करूं और वो इस कर्व के अंदर आ जाए, इसका क्या मतलब है? डिजाइन से बिकॉज़ द पीयू एंड एमयू का जो सेट है वो कैपेसिटी से कम है, इसका मतलब है से तो ये आसान तरीका है कि मैं एनालिसिस से पीयू और एमयू मालूम कर लूं। पीयू और एमयू मुझे एनालिसिस मेरे पास आ जाएगा और मेरे पास एक कॉलम है जिसकी कैपेसिटी का मैंने मालूम किया हुआ है, और मैं 10 के कॉलम के पीयू और एमयू डाउन उसके अंदर डाल दूं। अगर इससे बाहर आ गया इसका मतलब है कि कॉलम इसके लिए सेफ नहीं। तो एनी पॉइंट ऑफ दिस कर्व और इनसाइड द कर्व मींस द करंट से डिमांड को जब मैं इस वैल्यू पर प्लॉट करूंगा और एनी पॉइंट इनसाइड दिस हाइपन ऑन द कर्व तो उसका मतलब है कि करंट से। तो इस वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर प्रोवाइड कि हम अब एक कैपेसिटी कर्व मालूम करने का तरीका करते हैं, कैपेसिटी कर्व को ड्रा करने का तरीका सीखते हैं। Any question on this? Any question है? सोच के क्या कहता है? अगर आपको वो पता कितना सेफ है कि एब्सोल्यूट टर्म्स का मालूम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका अगर जितना कर्व के नजदीक है तो इसका मतलब है कि आपका सेक्शन और रिइंफोर्समेंट जो है वो काफी ऑप्टिमाइज, और जितना इसके अंदर है जिसका मतलब है कि आप रिइंफोर्समेंट थोड़ा कम कर सकते हैं। ठीक है ना, साइज आप थोड़ा कम कर सकते हैं। Okay, let's go ahead now with this concept. अच्छा, अब आप देखेंगे कि ये कैपेसिटी कर्व जो है, ये कैपेसिटी कर्व का तरीका जो बड़ा आसान है। This capacity curve is called as interaction diagram. Interaction diagram. Why interaction diagram? Interaction, because this shows an interaction between what and what? Between P and M. P और M के दरमियान हमने इंटरएक्शन बताया था। कैसे इंटरएक्शन? कि आपने अगर हम इसको डिस्कस करते हैं कि बिल्कुल अगर मैं इसके बॉटम पे जहां पर P हमारे पास 0 है, अगर मैं इसको इधर देख लूं, दिस पॉइंट, दिस लोएस्ट बॉटम पॉइंट ऑफ द कर्व हियर, इधर मेरे पास P तो 0 है और M मेरे पास कितना है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इस कॉलम की किसी और जगह पर जहां पर 5pn की कुछ वैल्यू है या इधर इसकी फ्लेक्चर कैपेसिटी देखूं तो फ्लेक्चर कैपेसिटी इसकी ज्यादा हो जाती है। फ्लेक्चर कैपेसिटी ज्यादा, इसका मतलब ये है कि अगर कॉलम के ऊपर कोई एक्सियल लोड न हो तो उसकी फ्लेक्चर कैपेसिटी का लोड ये पॉइंट, लेकिन जैसे ही मैं उसके ऊपर लोड रखता हूं तो उसकी फ्लेक्चर कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। और उसका रीजन मैंने बता दिया कि टेंशन को वो कंप्रेशन जीरो करेगा या कम करने की कोशिश करेगा। तो अगर आप ये केस देखें, दिस इज द केस ऑफ बीम, ये बीम का केस, इधर जो है ये बीम का केस, बिकॉज देयर इज नो एक्सियल लोड, इस पॉइंट पे कोई एक्सियल लोड नहीं है, बिकॉज एक्सियल फोर्स इधर से शुरू हो रहा है और एक्सियल फोर्स अगर ये हो तो एक्सियल फोर्स 0 है। इसका मतलब है कि इसके लिए एक्सियल फोर्स 0 है तो इतना बिल्डिंग मूवमेंट ये बर्दाश्त कर सकता है। अगर एक्सियल फोर्स 0 हो तो इतना बिल्डिंग मूवमेंट बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर थोड़ा लोड डालेंगे तो उसकी फ्लेक्चर कैपेसिटी इंक्रीज होती है, और इस तरह से एक्सियल लोड बढ़ाने से फ्लेक्चर कैपेसिटी इंक्रीज होती जाती है टिल यू रीच ए पॉइंट। अगर आप इस पॉइंट तक पहुंच गए तो इसका मतलब है कि अब ये पॉइंट जो है इसके बाद बिहेवियर जो है बिल्कुल चेंज हो रहा है, इसके बाद बिहेवियर चेंज हो रहा है। इस पॉइंट तक फ्लेक्चर कैपेसिटी बढ़ रही है एक्सियल लोड के साथ, लेकिन इसके बाद मजीद एक्सियल लोड बढ़ाने से एक्सियल फ्लेक्चर कैपेसिटी अब कम हो रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये केस जो है पेपर कंप्रेशन की तरफ जा रहा है।
कंप्रेशन तो नो डाउट के ज्यादा ले रहा है, लेकिन इसकी फ्लेक्चर कैपेसिटी कम हो रही है, और इसकी एक एक्सियल इसका एक पॉइंट आ जाएगा कि जिसके ऊपर इसकी एक्सियल कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इसकी फ्लेक्चर कैपेसिटी यानी कोई भी बेंडिंग मोमेंट नहीं दे सकता है, इस वक्त कोई बेंडिंग मोमेंट बर्दाश्त करने के काबिल नहीं, लेकिन इसके लोड बहुत ज्यादा ले सकता है। तो इसका बिहेवियर जो कॉलम का है या इंटरेक्शन बिटवीन PU एंड MU इज डेमोंस्ट्रेटेड बाय द कैपेसिटी कर्व, which is also called as इंटरेक्शन डायग्राम। ठीक है, इसको इंटरेक्शन डायग्राम। Okay, now for a column of known dimensions and reinforcement, you should pay attention now. Several pairs of P and M from various values of C using equation 1 and 2 can be obtained and plotted as shown. Such a graph is known as capacity curve or interaction diagram. Nominal and design diagrams are given in the figure. इसमें nominal तो ये है without phi और phi के साथ ये थोड़ा सा आपको जो ये इसमें एक jump सा नजर आ रहा है, you can see the jump variable thing. Ideally speaking, the capacity curve with phi 10 and phi m should have been parallel to MN और PL के पैरेलल होना चाहिए था, क्योंकि फाई तो कांस्टेंट है, लेकिन फाई जो है फाई की वैल्यू में ये जंप क्यों आ रहा है? इधर तक तो ये केस जो है पेवर कॉलम का केस बन जाता है, पेवर कॉलम का, जिसमें कंप्रेशन नंबर का जो फाई 0.65 और 0.7 हम लगाते थे ना स्पाइरल के लिए और काइट के लिए, तो अगर इसमें 5.65 हो तो बिल्कुल उसके पैरेलल आ रहा है इस पॉइंट तक। ये इन दोनों के दरमियान जो दिस इज एग्जैक्टली ये 5.75 से इसको आप मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट दिस कर्व, ये कर्व आप हासिल। लेकिन इसमें ये चीज जो आ रहा है ये क्या है? ये असल में इस जगह पर एक्सियल लोड इतना कम हो जाता है कि ये बीम की तरह बन जाता है। तो बीम में 5.9 तो 5.9 इसको बहुत करीब कर देता है, ठीक है ना? ये पॉइंट जो है ये इसको बहुत करीब कर देता है, और ये केस बिल्कुल बीम वाला केस है इधर तक। तो इसकी एक खास वैल्यू है स्ट्रेन की, इसकी एक खास स्ट्रेन की वैल्यू है कि जब उधर तक की वैल्यू आ जाए तो फिर आप इसको बीम कर सकते हैं, और वो वैल्यू क्या है वो नेक्स्ट स्लाइड पे है। अच्छा, ये अगर PU अंदर हो तो कैपेसिटी कर्व जो है कैपेसिटी कर्व के अंदर हो तो इट विल बी कंसीडर्ड एज पास्ट। These are also few interaction diagram के चंद फीचर्स हैं। एक इसमें कंप्रेशन कंट्रोल है, ऊपर का सेक्शन जो मैंने आपको बता दिया कंप्रेशन कंट्रोल है, ये कंप्रेशन कंट्रोल है। कंप्रेशन कंट्रोल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्सियल लोड बढ़ाने से आपकी फ्लेक्चर कैपेसिटी कम होती है, तो इसका मतलब इसलिए कंप्रेशन कंट्रोल रीजन। और नीचे का जो पोर्शन है टेंशन कंट्रोल रीजन, जिसमें एक्सियल लोड बढ़ाने से फायदा है, एक्सियल लोड बढ़ाने से फायदा है। तो ये जो इसका पॉइंट है इसको बैलेंस फेलियर पॉइंट कहते हैं, जहां से इसका बिहेवियर चेंज होता है ना, ये पॉइंट, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ बैलेंस फेलियर। ठीक है, इसके नीचे बिल्कुल टेंशन रीजन है और ऊपर जो है कंप्रेशन कंट्रोल रीजन, नीचे टेंशन कंट्रोल रीजन। नीचे में जब आप एक्सियल लोड बढ़ाते हैं तो फायदा है, जब इससे ऊपर आप एक्सियल लोड बढ़ाते हैं तो फिर फायदा नहीं है बल्कि नुकसान है, आपका फ्लेक्चर कैपेसिटी कम होती है। अब हमारे पास जो कॉलम्स रिइंफोर्स कंक्रीट फ्रेम स्ट्रक्चर में होते हैं ना, तो इन्हें हाई राइज बिल्डिंग तो लोवेस्ट स्टोरी कॉलम्स उनका बिहेवियर कैसे होना चाहिए? लोवेस्ट स्टोरी के कॉलम का बिहेवियर कैसे होना चाहिए? ऊपर साइड पे नीचे साइड, ऊपर साइड से बिकॉज़ इट लोड इज मोर, एक लोड में काफी ज्यादा है। जब हम लोवेस्ट स्टोरी के कॉलम को कंसीडर करेंगे तो उसके लोड बहुत ज्यादा है, तो वो ऊपर के पोर्शन में होगा, बल्कि हो सकता है कि वो इधर इस जगह पर लोवेस्ट स्टोरी के कॉलम तो उस पे लोड बहुत ज्यादा होगा, ठीक है? और टॉप स्टोरी के कॉलम्स हो सकता है कि इस पोर्शन में तो उस पे लोड बहुत कम है और बेंडिंग मोमेंट है उसको, तो इसमें इसके बिहेवियर के कॉलम के बिहेवियर में भी उस तरह से चेंज होगा और डिजाइन में भी चेंज होगा उस हिसाब से। बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, आप इसमें देखिए एक ये पोर्शन है, ये अगर एक्सियल लोड में 5P P0 जो है P0 असल में है 5PN,
तो 5pn तो मेरा इधर आना चाहिए, लेकिन ये ACI कोड ने इसके ऊपर जो फैक्टर अप्लाई किया है वो ये फैक्टर है कि आप एक्सीडेंटल एक्सेंट्रिसिटी के लिए आप उसको कैलकुलेट करें, ठीक है ना। तो ये जो हमारा डॉटेड पोर्शन, इस पर डॉटेड पोर्शन विल बी नेग्लेक्टेड, दिस डॉटेड पोर्शन विल बी नेग्लेक्टेड इन द केस ऑफ जब हम इंटरेक्शन डायग्राम आगे बनाएंगे ना अपना, तो उसमें हम ये डॉटेड पोर्शन नेग्लेक्ट करेंगे और इसको स्ट्रेट लाइन हम इधर लगाएंगे। तो ये इंटरेक्शन डायग्राम का ये आप याद रखेंगे कि इंटरेक्शन डायग्राम ये चीज़ आपने करनी है। अच्छा, ये इंटरेक्शन डायग्राम बिल्कुल ऐसे इसके पैरेलल भी हो सकता है और ऐसे भी आप ले सकते हैं। ACI कोड के मुताबिक आप अगर कांस्टेंट फाई इस्तेमाल करें 0.65 तो दिस इज अलाउड फॉर टाइट का। आपको अगर ये जंप आप नहीं करना चाहते तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा सेफ, अगर ये जंप इसका फायदा नहीं लेना चाहते, दिस वन, इसमें 0.9 आप इस्तेमाल करेंगे और असल में वैल्यू 0.9 एग्जैक्ट नहीं है, इधर से लेकर इधर तक जो वैल्यू है वो 0.65 से 0.9 तक वेरी करेगी। इधर वैल्यू एग्जैक्टली 0.9 हो जाएगी और फिर आपका ये बहुत क्लोज हो जाएगा। लेकिन इफ यू डोंट वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस और आप 0.65 पर ही करेंगे तो बिल्कुल इसके पैरेलल इधर तक पहुंच जाएगा, व्हिच इज अलाउड एज पर ACI कोड बिकॉज़ इट इज मच सेफर, मोर सेफ देन दी 5.9, इससे ज्यादा सेफ। तो ये ACI कोड अलाउ करता है, बट इफ यू वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस यू आर अलाउड टू डू दिस। अच्छा, अब फाई की वैल्यू हम अगर फाई की वैल्यू के लिए आप देखें, इसमें इस कर्व को जरा गौर से देखें। ये ACI कोड ने जो आपको जरा एक ये एक्सट्रीम है, इस एक्सट्रीम को आप देखें, दिस एक्सट्रीम ऑन द राइट, इसमें इस एक्सट्रीम को आप देखें, फाई की वैल्यू ये है, ये ब्लू लाइन इज फॉर स्पाइरल एंड दिस लाइन इज फॉर टाइट कॉलम। टाइट कॉलम के लिए हमारे पास फाई की वैल्यू 0.65 है, तो अगर कंप्रेशन कंट्रोल रीजन मेरे पास है तो बिल्कुल ये तो फिर 0.65 है। और अगर टेंशन कंट्रोल रीजन है जिसमें हमारा ये, अच्छा, कंप्रेशन और टेंशन कंट्रोल रीजन स्ट्रेन पे डिपेंड करता है। स्ट्रेन मेरे पास कितना, अगर स्ट्रेन मेरे पास यील्ड के बराबर हो तो ये इधर इस पॉइंट पे इस जगह इस इधर जो है स्ट्रेन मेरा यील्ड से कम भी हो सकता है स्टील में, ठीक है, इस साइड पे कंप्रेशन कंट्रोल रीजन में। और इधर जो है मेरे पास हमेशा स्ट्रेन मेरा यील्ड से ज्यादा होगा, इस तरह की बीम की केस में पॉइंट नंबर 5 से भी ज्यादा है। तो दिस इज फेवरेट टेंशन कंट्रोल रीजन। टेंशन कंट्रोल रीजन में आपका जो फाई है वो 0.9 के बराबर होगा। अगर आप इसमें ये वैल्यू डाल 0.65 प्लस 0.25 ये चीज में आप डाल देंगे ये वैल्यू dy तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ 0.9, इधर आपके पास 0.9 की वैल्यू आ जाएगी। तो बीम के केस में हमेशा हमारे पास 0.9 की वैल्यू है, जबकि कॉलम का वो केस है एक्सट्रीम 0.6। लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान कोई केस, इन दोनों के दरमियान यानी स्ट्रेन की वैल्यू मेरे यील्ड को प्लस 0.0003 जो कि बीम का केस है ना, तो बीम वाला केस है, इसमें अगर आप 0.02 60 का डालेंगे तो 0.05 हो जाएगा। तो बीम का केस अगर स्ट्रेन की वैल्यू मेरे पास यील्ड और 0.05 के दरमियान है तो इसका मतलब है कि आपके पास फाई 0.9 भी नहीं है और 0.65 भी नहीं है। आप इसको मालूम कर सकते हैं, और वो कैसे मालूम कर सकते हैं? फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये जो ऊपर इक्वेशन है ना ये वाला, या ये इक्वेशन 0.65 प्लस 0.25 स्ट्रेन। अगर आपके पास लेट्स से स्ट्रेन है 0.004 तो जरा मालूम करें आप 0.004 60 स्टील के लिए यील्ड स्ट्रेन 0.002 है, मालूम करें फ्रॉम दिस इक्वेशन। 0.65 प्लस 0.25 इधर देखें, टेंसाइल स्ट्रेन इज 0.004 माइनस 0.002 डिवाइड बाय 0.003, इससे आपके पास फाई निकल आएगा। कितना निकला? 0.81। इसका मतलब है कि अगर स्ट्रेन आपके पास में 0.004 है तो आपको 5.81 इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। और आप अब स्ट्रेन की वैल्यू आप 0.005 ले लें, 0.005 0.9 which is the case of beam का केस है ना, 0.9 से आप कम नहीं कर सकते, 0.9 से कम अलाउड नहीं, 0.9 कम होगा। अब अगर आप टेंसाइल स्ट्रेन को यील्ड के बराबर है तो फिर देखिए 0.65 आ जाएगा ना। इसका मतलब है कि
0.65 जो है वो कंप्रेशन जिसमें यील्ड टेंसाइल स्ट्रेन यील्ड के बराबर हो या यील्ड से कम हो, तो उस केस में आपके पास 5.65 हो, और अगर टेंसाइल स्ट्रेन आपके पास 0.05 हो या उससे ज्यादा हो तो फिर आपके पास 5.9 है, और अगर इन दोनों के दरमियान हो तो फिर आप 5 मालूम कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम इस तरह नहीं करते हैं। ये एशियाई कोड की एक परमिशन है कि आप इसका फायदा उठा सकते हैं। हम सेम फाइल के लिए, कांस्टेंट फाइल के लिए हम नॉमिनल कैपेसिटी मालूम करते हैं और उसके ऊपर 5 मल्टीप्लाई करके पूरा इसका वो कर देता है, और 5 का एडवांटेज 0.9 पे हम नहीं लेते। ओके, नाउ लेट्स ड्रा द इंटरेक्शन डायग्राम। आप इंटरेक्शन डायग्राम को ड्रा करें और आप इसको एक एक पॉइंट को नोट करते जाएं, अपनी कॉपी में लिखते जाएं। आज के लेक्चर में सबसे अहम बात यह है कि यू विल लर्न हाउ टू ड्रा इंटरेक्शन डायग्राम फॉर एनी कॉलम। किसी भी कॉलम के लिए आप इंटरेक्शन डायग्राम खुद ड्रा कर सकते हैं। यू कैन आल्सो डेवलप स्मॉल प्रोग्राम फॉर दिस सीक्वेंस आप कोड बना सकते हैं और इसके लिए आप इंटरेक्शन डायग्राम किसी भी कॉलम के लिए आप टेबल ड्रा। ठीक है, इसको गौर से आप देखते जाएं, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बहुत आसान है। पॉइंट वन कौन सा पॉइंट है? पॉइंट वन वो पॉइंट है जिससे कंसेंट्रिकली लोडेड कॉलम का केस, ठीक है ना? उसके लिए एक इक्वेशन दिस पॉइंट वन। हमने इंटरेक्शन डायग्राम का शेप देख लिया। हम इंटरेक्शन डायग्राम के तमाम पॉइंट प्लॉट नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे कि मेरे पास इस प्लॉट में अगर मैं 2-3 पॉइंट मेरे लिए बहुत अहम है, वैसे 3 पॉइंट इस पे बहुत अहम है, 3 पॉइंट्स। नंबर 1 इज दिस पॉइंट, नंबर 2 इज दिस पॉइंट एंड नंबर 3 इज दिस पॉइंट। 1, 2 एंड 3 उसमें स्ट्रेट लाइन आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको कर्व बनाना चाहता हूं तो कम से कम मेरे पास एक पॉइंट और होना चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। तो हम इसमें 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड समटाइम्स 6, हम इस पे 5 या 6 पॉइंट फॉलो करेंगे और डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो आप पॉइंट 1 कैसे मालूम करेंगे? पॉइंट 1 इज द केस ऑफ प्योर कंप्रेशन जिसमें कोई एमएन 0 है, और आप ये मालूम करेंगे वेरी इजीली, जिस तरह आपने कंसेंट्रिकली लोडेड कॉलम के लिए कैपेसिटी मालूम किए थे ना, उस तरह से आप मालूम करें इक्वेशन में, नॉट डिफिकल्ट। ठीक है ना? अच्छा, अलबत्ता ये बात आप याद रखेंगे कि जो इक्वेशन इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इक्वेशन तमाम के तमाम दो इक्वेशन है जो कि सिर्फ 2 लेयर्स ऑफ रिइंफोर्समेंट, because this is just for demonstration, 2 layers of reinforcement. If there are 3 or 4 layers of reinforcement, बहुत आराम से आप इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। इतना जो तरीका मैंने आपको सिखा दिया उस तरीके के मुताबिक आप 2 या 3 या 4 या 10 लेयर्स भी हों तो आप ये रिइंफोर्स्ड पोस्ट में ये इक्वेशंस डिराइव करें, एंड द रेस्ट ऑफ द मेथड इज द सेम, जिस तरह आप यूज कर रहे हैं। ये एक केस होगा जिसमें स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या है, पूरे के पूरे कॉलम में स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या है, कंप्रेशन एवरी पॉइंट, और ये इक्वल उसका स्ट्रेस डायग्राम राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है, इस तरह होगा। एट फेलियर स्ट्रेंथ इन steel and concrete both will be equal to 0.0003, and we exactly know that the steel will yield because Fs must be equal to Fy, तो ये हमें पता है। नेक्स्ट केस कौन सा है? नेक्स्ट केस वो है कि जिसमें हमारे पास C जो है, C की वैल्यू अगर हम एग्जैक्टली कॉलम के साइज के बराबर ले लें तो हमारे पास जो स्ट्रेस डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा कि उसमें टेंशन बिल्कुल 0 है, टेंशन 0 है एक एंड पे, और कंप्रेशन फिर भी 0.00, तो ये केस हमारा बन स्ट्रेस हमारे इस तरह होगा, स्ट्रेस बिकॉज C इज द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। इसका मतलब है कि न्यूट्रल एक्सिस जो है इधर है, न्यूट्रल एक्सिस इस डेप्थ को कहते हैं जिसके एक साइड पे कंप्रेशन हो और दूसरी साइड पे टेंशन। तो इसमें आप टेंशन है नहीं, तो हमारे पास ये C अगर इसके बराबर हम दे लें तो ये केस बन जाएगा 0 टेंशन का केस। और इसके लिए इक्वेशंस हम बहुत आराम से लिख सकते हैं, वही 2 इक्वेशंस हम इस्तेमाल करेंगे। C की वैल्यू हम डाल देंगे 12 के बराबर, Fs1 Fs2 मालूम करेंगे, Fs1 Fs2 को चेक करेंगे, Fy से ज्यादा तो नहीं है, अगर ज्यादा है तो हम उसको Fy के बराबर ले लेंगे और Φ3 और Φ मालूम करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू हम C की वैल्यू H - D प्राइम के बराबर लेते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है वो इतनी है कि ये छोटे से इलाके में जो टेंशन साइड पे स्टील है उसमें स्ट्रेस क्या है, इस वक्त टेंशन साइड पे जो स्टील उसमें स्ट्रेस क्या है, 0 है, और उसमें स्ट्रेस 0 है, उससे नीचे टेंशन है लेकिन उसमें 0 और ऊपर सारे का सारा। इट्स अनदर कंडीशन।
इसमें हम वो पॉइंट लेंगे ना, हम वो पॉइंट्स पे करेंगे जिसमें कैलकुलेशन कम से कम, हम वो पॉइंट्स इसमें उठाएंगे जिसमें कैलकुलेशन, अगर इसमें AS 0 हो गया, FS 0 हो गया तो एक टर्म हमारा खत्म हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट ऑफ बैलेंस फेलियर। पॉइंट ऑफ बैलेंस फेलियर वो पॉइंट है जिसमें हमारे टेंशन साइड पे जो स्टील है, कंप्लीट साइड पे नहीं, टेंशन साइड पे, टेंशन साइड पे जो स्टील है उसमें जो स्ट्रेन है दैट इज एक्जेक्टली इक्वल टू यील्ड, टेंशन साइड पे जो स्ट्रेन है वो यील्ड के बराबर है। तो ये कंडीशन हो सकती है ना, इस कंडीशन के मुताबिक, अगर इस कंडीशन पे सी मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर मुझे ये पता हो कि टेंसाइल स्ट्रेन इन स्टील इज इक्वल टू यील्ड, तो मैं इस इक्वेशन में इसको डाल दूंगा। इक्वेशन हमने डिराइव किए थे FS1 के लिए, T is equal to this, ठीक है ना, इसमें आप स्ट्रेन पॉइंट 3 और डेट 40 के लिए और डेट 60 के लिए आप यूनिट्स में डाल देंगे तो आपके पास C की इक्वेशन इस तरह निकल आएगी, ठीक है ना। ये स्ट्रेन की वैल्यूज, इससे आप FS1 FS2 फिर मालूम कर सकते हैं। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट, पॉइंट हमारे पास कौन सा है? पांचवा पॉइंट हमारे पास वो है कि जिसमें टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू ETY प्लस 0.003, बीम का केस है, यानी यील्ड स्ट्रेन प्लस 0.003। इसके लिए 5.9 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इसमें भी आप दोबारा इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आप C इज इक्वल टू D, ये केस है ना 0.005 का, तो अगर आप इसमें स्ट्रेन 0.005 के बराबर लेते हैं तो आप इसमें C मालूम कर सकते हैं। उस C के लिए आप कर लेंगे 0.41D और 0.370 आता है पॉइंट। अच्छा, अब इसमें हम ये कैलकुलेशन बार-बार नहीं करेंगे, ये वाली कैलकुलेशंस जी, दिस कैलकुलेशन विल नॉट डू एवरी टाइम। हम बैलेंस कंडीशन के लिए ऑटोमेटिकली C इक्वल टू 0.680 लेंगे ग्रेड 40 के लिए, और ग्रेड 60 के लिए C इक्वल टू 0.5। आप इसको याद रखें बस। ये जो बैलेंस पॉइंट मेरा है पॉइंट नंबर 4, इसके लिए मेरे पास C 0.680 होगा अगर ग्रेड 40 का केस, और अगर ग्रेड 60 का केस तो 0.580 होगा। हम दोबारा ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे। पहले हमने C एज्यूम किया, पहले पॉइंट में तो C की जरूरत ही नहीं है, दैट इज इक्वल टू P0। सेकंड केस में हमने C को H के बराबर लिया, ठीक है ना। थर्ड केस में हमने C लिया H माइनस D प्राइम के बराबर, ठीक है। और ये फोर्थ पॉइंट में हमने बैलेंस पॉइंट ये है, इसके बैलेंस पॉइंट C आप लेंगे 0.680 अगर ग्रेड 40 है और 0.580 अगर ग्रेड 60, तो D आपको पता होगा आपके, ठीक है। पांचवें पॉइंट के लिए आप ये दो वैल्यू 0.41 जो 0.370 ग्रेड 40 60 के लिए लेंगे, और दोबारा आप उसमें 5P और 5M मालूम करेंगे। फाइनली पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 के लिए आप स्ट्रेन की वैल्यू 0.005 से बहुत ज्यादा वैल्यू, डबल वैल्यू जूम करें, डबल वैल्यू 0.0005 की वैल्यू डबल करेंगे तो 0.01 वैल्यू हो जाएगी। 0.01 की वैल्यू आप लेंगे तो 0.6 बार के बाद आपके पास आ जाएगा और बाद में थोड़ा थोड़ा ऊपर रह जाएगा, तो फिर आप उसको नीचे मिला दें, आप उसको नीचे मिला दें, ठीक है। और इसमें आपके पास C जो है आमतौर पे 0.23 और 0.25 तकरीबन 60-40 के बराबर C आ जाएगा। इससे जब हम 5P और 5Mn की वैल्यूज मालूम करेंगे और इसको प्लॉट करेंगे तो वी विल गेट द इक्वेशन डायग्राम जो कैपेसिटी का। So let's do an example now. अब इसको आप एक एग्जांपल इसके लिए इक्वेशन डायग्राम नहीं ब्रेक जरूरत नहीं, ये आप करेंगे 12/1 अगर तो जब थोड़ा सा चले जाते हैं, अच्छा कोई बात नहीं। अगर कोई गाय लेना चाहता है पानी पीने के लिए जो बात चला जाए निकाल के फिनिश टुडे एक्स्ट्रा क्लास हमने ब्रेक के लिए नहीं करेंगे, आई डोंट हैव टाइम। अगर आप सीधे पढ़ रहे हैं तो बहुत चक्कर होगा बस, ठीक है। ये देखिए x equal to 3 KSI equal to 40 KSI, there are 4 numbers इस बार and 12 by 12 is time। अब इसको जरा आप इसके वैल्यू सारा लिख लें, तो उसके बाद हम इसका इंडक्शन डायग्राम बनाएंगे। बस खत्म है, आप जो इंडक्शन डायग्राम का तरीका आपने सीख लिया, बाकी कैलकुलेशन से आप खुद देख सकते हैं।
अच्छा, एग्जामिनेशन में इस पे जो क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, उसको भी आप जरा सुन लें। एग्जामिनेशन में डिफरेंट डायग्राम पूरे का पूरा डेवलप करना तो काफी टाइम लेता है। तो इसमें जो क्वेश्चन इस तरह आता है कि आप 0.2 मालूम करें, 0.3 या 0.2 या 0.14 एंड दिस 6 मालूम करें और इंडक्शन डायग्राम स्ट्रेट लाइन से बनाएं। तो सब क्वेश्चन इस तरह आता है। ओके, अब आप देखें 5Pn एंड 5Mn की इक्वेशंस को जरा भी आप नोट करें अपने नोटबुक में। 5Pn एंड 5Mn की इक्वेशंस। अब हम 1 by 1 पॉइंट मालूम करते हैं। पॉइंट 1, for point 1 we have this value 5Pn is equal to this thing, ठीक है। इसमें आप 0.853 एज इज 144 माइनस एरिया ऑफ इज 1.76, क्योंकि इसमें 4 नंबर 6 बार हैं, तो उसका एरिया ऑफ कितना बनता है 1.76 प्लस 40 इंटू 1.6, तो ये 281 पॉइंट। तो आपके पास एक पॉइंट आ गया जिसमें 5 तो ऊपर का पॉइंट आपके पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास C इज इक्वल टू H है 12 इंच। जब C आप 12 इंच के बराबर लेंगे तो आप स्मॉल a मालूम करेंगे बीटा 1C 10.2 इंच। FS1 आप मालूम कर, FS1 को गौर से देखें 0.003 EC माइनस D प्राइम डिवाइड बाय C 12 माइनस 2.25 डिवाइड बाय 2, तो दिस कम्स आउट टू बी 70.69। यही सारा मसला है। तो उसको हम FY 40 के बराबर 70, तो हमें 70 तो हो ही नहीं सकता है, तो this cannot be greater than FY, this will be taken as 40। FS2 comes out to be minus 16। क्या मतलब है माइनस 16 का मतलब ये कि जो डेरिवेशन हमने की थी ना, हमने ये अज्यूम किया था कि एक साइड पोटेंशियल है इसकी और दूसरा साइड कंप्यूटेशन है। इसका मतलब है कि टेंशन माइनस कंप्यूटेशन में नहीं, ये कंप्यूटेशन माइनस साइन आ गया कंप्यूटेशन, तो वो है कि डायरेक्ट एक्सिस के बराबर होगा पोटेंशियल में, तो नहीं कंप्यूटेशन में। तो हम इसी माइनस साइन के साथ उधर पुट करेंगे इसको, उसी माइनस के साथ। जब माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 5Pn मालूम करेंगे 0.65 0.853 इंटू 10.2। ए है हमारे पास 10.2 इंच और बी 12 इंच है, प्लस 0.88 इंटू 40 प्लस 0.88 इंटू 16.31। अब इसको जरा गौर से आप देखें, दिस एएस को हमने एएस को निकाला था एएस1 इज इक्वल टू एएस2 इज इक्वल टू एएस। तो आपके पास 4 बार है, तो आप इसको 1.67 से नहीं लेंगे, हम लेंगे क्योंकि आपने उसको एज्यूम किया था कि एएस1 और एएस2 बराबर है। तो ये आप क्या करेंगे, नहीं तो कंप्रेशन कंट्रोल में तो हमें एग्जैक्टली पता है। फाइमन विद 5 इक्वल टू 0.65, इसमें भी आप FS1 FS2 की वैल्यू जो आपने मालूम की है ऊपर वो इधर आप डाल देंगे, बाकी तो हर चीज होगी। तो इसमें आपके पास फाइमन की वैल्यू 19.45 फुट के और 5Mn की वैल्यू आपके पास 5Pn की वैल्यू आपके पास कितनी निकली है 235 और 419 पॉइंट, तो 2 पॉइंट आपके पास याद है, ठीक है। प्लीज
लेकिन आपके पास स्टील की है नहीं तो आप कैसे? अगर मैं आप देखें आपकी कैपेसिटी है ना 20 की वजन उठा 20 पाउंड वजन उठाने 120 पाउंड वजन उठाने अगर आपकी कैपेसिटी 120 पाउंड वजन उठाने की है और मैं आपकी कैलकुलेशन आपकी कैपेसिटी मालूम करना चाहता हूं आपने कैपेसिटी और आपके पावर कंप्यूटर जाके 160 मैं कितनी तब मैं कितनी 120 लूंगा 160 लूंगा तो मैं तो आपकी कैपेसिटी को ओवर एस्टिमेट कर रहा हूं हम यही कर रहे हैं इक्वेशन में मेरे पास जो स्ट्रेस है ना उसके अंदर स्ट्रेस वो 70.9 आ रहा तो 70.9 तो वो ले नहीं सकता जब मैं एफएस को 70.9 बटा 40 लूंगा तो क्या होगा कि मेरे पास स्टील की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी स्टील की क्वांटिटी ज्यादा होगी क्योंकि एक बार 1.5 बार अगर 70 लेंगे तो दो बार का स्ट्रेस कम हो जाएगा ना तो आखिर में तो मैंने स्टील की क्वांटिटी से मालूम कर आखिर में अगर आप 70.9 इसको ले लेंगे तब तक 5 बहुत ज्यादा आ जाएगा कुछ नॉट गलत तो नहीं कैसे कैपेसिटी है नहीं Any other question? This was a good question. Any other question? नहीं तो शायद इसको कर रहा है हमने शुरू में डिस्कस डायग्राम यूज किया था ना उसमें हमने ये कहा था कि एक साइड पे कंप्रेशन दूसरी साइड पे टेंशन और इतने के जवाब इस संबंध में देखिए इस वक्त कंप्रेशन और ये है भी जब सी एच के बराबर होगा तो इसका स्टेट ऑफ स्ट्रेस किस तरह है आप अगर इसका स्टेट ऑफ स्ट्रेस देके सी इक्वल टू एच के बराबर ये स्टील जो है कंप्रेशन में है टेंशन में है कंप्रेशन में आल्दो के कंप्रेशन की वैल्यू बहुत कम है उधर भी वैल्यू 16 आ रही है उधर भी वैल्यू 16 एज कंपेयर टू 40 वैल्यू बहुत कम है लेकिन कंप्रेशन में टेंशन में और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट सी ये FS2 0 हो जाएगा होना चाहिए आप देख लेंगे अब next point when C is equal to H minus D prime FS1 is in compression but the value comes out to be 66 which is not acceptable if Y will be equal to 40 KSI FS2 is equal to 0 which must be FS2 0 होगा क्यों 0 होगा कि आपने आपने C की वैल्यू की जो H minus D prime दो स्ट्रेन 0 आ रहा है और स्ट्रेन 0 पर any value other than this now इसके बाद जो भी वैल्यू आप C की एज्यूम करेंगे तो इसमें आपके पास टेंशन होगा ठीक है ना तो इससे आप phi मालूम करें and then phi m मालूम करें you will get 2 more points next point 4 कौन सा पॉइंट है point 4 आपके पास बैलेंस पॉइंट और आप C की वैल्यू 0.680 है ग्रेड 40 के तो 0.680 के मुताबिक C आपका 6.63 इंच आ जाएगा 6.63 इंच इससे आप A मालूम करें 5.6 इंच और बाकी तरीका वही है FS1 57.47 आ रहा है इसको आप FY के बराबर ले लें FS2 आपके पास 40.94 आ रहा है टेंशन में है FS2 इसका टेंशन में है लेकिन 40 से ज्यादा तो उसको 40 लेंगे FS1 भी 40 लेंगे जब दोनों का 40 ले लेंगे तो S1 FS2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों और आपके पास सिर्फ कंक्रीट की कैपेसिटी से ये निकल आएगा और phi mn के लिए फिर आप इसको ले लेंगे तो आपके पास 44 तो 2 पॉइंट आपके पास मजीद आ गए phi p और phi mn के बैलेंस पॉइंट और बैलेंस पॉइंट बहुत अहम पॉइंट है क्योंकि इसके बगैर आप टेक्निकल डायग्राम बना नहीं सकते पॉइंट 4 जी अब आगे आप देखें ना phi आपको खुद पता चल जाएगा दिस पॉइंट अब आप देखें दिस विल डिपेंड ऑन द स्ट्रेन दैट यू एज्यूम अगर आप स्ट्रेन को एज्यूम करते हैं ETY प्लस 0.003 इसका मतलब है कि phi 8.005 ठीक है ना स्ट्रेन की वैल्यू पे डिपेंड करता है आप देखें मैंने स्ट्रेन इतना एज्यूम कर लिया तो ये अगर 0.0002 हो ग्रेड 40 के लिए और 0.00134 हो ग्रेड 40 के लिए ठीक है ग्रेड 60 के लिए 0.002 और ग्रेड 60 के लिए 0.013 तो इस ट्रेंड से आप सी मालूम करेंगे ठीक है ना और हमने मालूम किए हुए दोबारा अगर मालूम करने की जरूरत है सिर्फ डेमोंस्ट्रेशन के लिए हमने आपको दिखा दिया है ये इससे सी मालूम हो गया 0.41D जो कि हमने उधर 0.5 में बता दिया है इस कम्स आउट टू बी 4 इंच अब सी आहिस्ता ऊपर जा रहा है सी आहिस्ता ऊपर जा रहा है
क्यों ऊपर जा रहा है कि आप बेड लिमिट बढ़ रहा है और इससे लोड कम हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा सेक्शन टेंशन में जा रहा है, टेंशन में ज्यादा सेक्शन जा रहा है। ठीक है, इससे फिर आप स्मॉल ए मालूम करें, FS1 मालूम करें। FS1 इज 31.8 KSI स्टिल इन कंप्रेशन। FS2 इज इन टेंशन, लेकिन टेंशन की वैल्यू बहुत ज्यादा है 125, इज नॉट एक्सेप्टेबल, वी विल यूज 40। इससे 5PN और 5MN मालूम करें। नाउ यू कैन यूज द 5 वैल्यू ऑफ 580.9, लेकिन एसीआई कोड कहता है कि अगर आप 5.65 भी इस्तेमाल करते हैं, आप क्योंकि अगर 0.65 इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम इंजीनियरिंग में कहते हैं कंजर्वेटिव साइड। कंजर्वेटिव साइड इसको कहते हैं कि ज्यादा सेफ है, ज्यादा सेफ। दूसरा भी अनसेफ नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि दूसरा भी अनसेफ नहीं है, लेकिन ये अनकंजर्वेटिव। इसको कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव का मतलब ज्यादा सेफ। अगर आप 0.65 लेंगे, ठीक है, और 0.9 भी अलाउड है, आप ले सकते हैं। इससे आप 5PN और 5MN मालूम कर लेंगे। नेक्स्ट वैल्यू इज द लास्ट पॉइंट, 0.6। 0.6 पे आपके पास स्ट्रेन की वैल्यू आप बहुत ज्यादा वैल्यू एज्यूम करें, बहुत ज्यादा में का मतलब है कि 2 टाइम्स ऑफ दिस। अगर आप 2 करेंगे तो इससे आपके पास C 0.25 दिया जाएगा, जो 2.44 इंच है। इससे आप स्मॉल ए मालूम करें। अब देखिए C बहुत कम हो गया, 2.44 इंच, बिल्कुल ऊपर तक चला है। कहाँ का बड़ा सिस्टम टेंशन में। अब जो हमारे पास ऊपर का स्टील होगा उसमें स्ट्रेस बहुत ही कम आना चाहिए, 6.77, ठीक है ना। और FS2 260 KSI which is not possible, 40 KSI। 5PN बहुत कम आएगा, आप 31.5, और 5MN आपके पास। Now you can plot it like this. In the two plants, एक MN का नामिनल कैपेसिटी, नामिनल कैपेसिटी वाला जो है डी हमारे पास आ गया, तो इसमें उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 पॉइंट आपके पास आ जाएगा। वही आप इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करें, अल्फा से, तो आपके पास ये पॉइंट आएगा। और इस पॉइंट को बिल्कुल आप आइडेंटिटी पर जब भी बनाएंगे तो जी पॉइंट आपके पास जो आ गया ना, जी आपका इंटरेक्शन डायग्राम, ये नहीं, इस बात को इग्नोर करें, क्योंकि ये एक्सीडेंटल बिल्डिंग के लिए आपको याद है अल्फा 5pn, तो इसमें अल्फा का आप मल्टीप्लाई करके यू विल गेट दिस पॉइंट, व्हेन यू ड्रॉ दिस लाइन कन्वर्ट टू एक्स एक्सिस, तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा और आपका इंटरेक्शन डायग्राम इधर से शुरू होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, समझ गए आप। अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, यूजिंग सेम पॉइंट यू विल गेट दिस लाइन, यूजिंग डिफरेंट पॉइंट यू विल गेट द अदर लाइन। ठीक है, जी एक डिजाइन एग्जांपल है जो कि आपके पास एक आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं एट होम्स। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करें, यही चीज है बिल्कुल। स्पेशल में फॉर इक्वल टू 60 के साई और 4 नंबर 8 बार इंस्टेड ऑफ 4 नंबर, तो प्रोसीजर बाकी वही है। तो अब इसमें इंटरेक्शन डायग्राम, तो आप इंटरेक्शन डायग्राम किया, हम इंटरेक्शन डायग्राम खुद डेवलप करेंगे इतने सारे कॉलम्स की नो, ये इंटरेक्शन डायग्राम अभी आप सीख रहे हैं, लेकिन लोगों ने डेवलप क्यों, ये तो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। अब आपने तरीका सीख लिया। अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा कॉलम हो कि उसका शेप रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, आई है, बी है, जो भी हो आप कर सकते हैं, आपके तरीका सीख लिया। तो फिर आप सर्कुलर है, हॉलो है, जो भी हो आपने कंसेप्ट सीख लिया, अब थोड़ा बहुत आप काम करके इंटरेक्शन डायग्राम की सेक्शन की डायग्राम के चुप भी करना चाहते हैं। बेस्ट ऑफ 5 जो आपके जिसमें डैम में इस्तेमाल होते हैं, उसके लिए अगर आप करते हो, किसी भी सेक्शन के लिए अगर आपके पास इंटरेक्शन डायग्राम मौजूद न हो तो आप इंटरेक्शन डायग्राम अपना डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, हमारा इंजीनियर जिसने मेरे साथ काम किया था एमएससी में इंटरेक्शन डायग्राम, उसको जॉब मिल गई थी ये हाइड्रो पावर वाले डीलर जेएलएम कश्मीर में है, बड़ा मशहूर प्रोजेक्ट है, काफी डिले हो गया। उसमें काम कर रहा था, उसमें एक ऐसे कॉलम आ गया जो कि 5 सेक्शन था। ठीक है, इंटरेक्शन डायग्राम वाज नॉट अवेलेबल, उसने उसके लिए अपना उधर एक इंटरेक्शन डायग्राम उस में डेवलप किया था, उसके लिए कोड भी उसने बनाया था। तो यू यूज उसमें कंसेप्ट यही है, जो कंसेप्ट आपने सीख
इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आप बाकी इंटरेक्शन डायग्राम डेवलप करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंटरेक्शन डायग्राम अवेलेबल नहीं है। इंटरेक्शन डायग्राम में तमाशा कागज के लिए हर जगह सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, लेकिन आप इंजीनियर से आप अगर किस्म किया जाए तो आप उसका बैकग्राउंड, उसके अंदर इंजन में क्या काम हो रहा है, नो दिस। अब इंटरेक्शन डायग्राम आज के अवेलेबल है, एसकेआई कोड में दिए हुए हैं और उससे बहुत आराम से हम कलम डिजाइन कर सकते हैं। दो स्टेप, ठीक है, इसको जरा देखिए आप। ये ग्राफ जिस प्रकार मैंने आपको दी है, these graphs are taken from Nelson book, graph A5 to A16। अगर आप इसका शेप देख लें तो शेप आर मोर और लेस द सेम एज इंटरेक्शन डायग्राम, है कि नहीं? ये स्ट्रेट लाइन है और फिर इस तरह से स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसका तरीका जो है डिजाइन का ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हमने इंटरेक्शन डायग्राम डेवलप नहीं किया, हमने सिर्फ रिक्वायरमेंट प्रोसेस निकाला। तो कैसे करना है? इसमें अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस पे कुछ चीज है और वाई एक्सिस पे चीज है, ठीक है। लेकिन इसमें कॉलम जब इंटरेक्शन डायग्राम को हम सिलेक्ट करेंगे तो इंटरेक्शन डायग्राम में हमें ये आप ऊपर देखें, इंटरेक्शन डायग्राम में हमें क्या चीज चाहिए? ऊपर आप देखें एफ सी प्राइम, एफ वाई और गेमा। तो ये तीन चीजें आपको नोन होनी चाहिए, तब आप इंटरेक्शन डायग्राम का ये स्टेप इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर्टीज या गेमा डिफरेंट हो तो उसके लिए दूसरा सेट अवेलेबल है। एफ सी प्राइम अगर डिफरेंट हो या गेमा डिफरेंट हो तो आमतौर पे एफ सी प्राइम 4 केसाई और एफ वाई इक्वल टू 6 केसाई, इन्हीं जब गेमा चेंज होगा तो गेमा चेंज होने से ये इंटरेक्शन डायग्राम आपका सेट जो चेंज होता जाएगा। समझ रहे हैं? और गेमा क्या चीज है? गेमा असल में ये जरा देख लें आप, दिस h total h of the column is equal to gamma h, इसको gamma h का है, this gamma h plus 2d prime, ठीक है जी, gamma h plus 2d prime। इसमें से gamma कैसे निकालते हैं? gamma is equal to h minus 2d prime divided by h, वेरी सिंपल, ठीक है। h is equal to gamma h plus 2d prime, इसमें से gamma निकालते h minus 2d prime divided by h। ये gamma आप मालूम करेंगे कॉलम के लिए, शुरू में आपको पता होगा कि मैंने केवल कितना लेना है सारा, तो उसमें से gamma h आप h मालूम कर लेंगे और इसी प्राइम में फाई मालूम करेंगे और फिर x एक्सिस और y एक्सिस दो पॉइंट एंड देन यू विल गेट द आंसर लाइक दिस। कैलकुलेट गेमा, आप गेमा मालूम करेंगे तो आप जब गेमा मालूम करेंगे तो आप जो रिलेवेंट इंटरेक्शन डायग्राम का सेट्स है ना, वो सेट आप पढ़ लेंगे, ये सेट मेरा काम है। उसके बाद आप दो चीजें और मालूम करेंगे, एक kn और दूसरा rn। kn और rn की दो इक्वेशंस आप जरा लिख लें, kn और rn की दो इक्वेशंस। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें मालूम ना हो। EU will be given to us क्योंकि तो कॉलम पे डिमांड है, MU will be also given to us, FC प्राइम, AG, HH साइज ऑफ द कॉलम, हर चीज पता है, ठीक है। इससे हमें क्या निकलेगा? जब हम x एक्सिस पे और y एक्सिस पे पॉइंट मालूम करेंगे तो हमने एक इंटरेक्शन डायग्राम में मुख्तलिफ परसेंटेज दिए, 1%, 2%, 3%, 4% ये करता है ना, ये परसेंटेज, तो 1% जो हमारे पास उसको एरिया अपने कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे हम। जैसे आप देखें kn ड्रा करेंगे, फिर rn ड्रा करेंगे, इससे हम रो मालूम करेंगे। ये अगर आप इंटरेक्शन डायग्राम के मुख्तलिफ देख लें तो ये रो 0.01, 1%, 0.02, 2%, 3%, इसके दरमियान कोई वैल्यू आ जाएगा तो हम अंदाजे से उसको ले लेते हैं। अब ये कॉलम है जो 12 by 12 का कॉलम है, इसमें 145 का
फैक्टर लोड है और मूवमेंट 40 फुट का है और FC प्राइम और FY गिवन है, इसको इस इंटरेक्शन डायग्राम से कैसे ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना इंटरेक्शन डायग्राम भी डेवलप कर सकते हैं और आप इससे डिजाइन भी कर सकते हैं। आप देखें D प्राइम 2.5 इंच हमने ले लिया, तो गेम हम मालूम करेंगे 12 - 2 × 2.5 डिवाइड बाय 12 0.6। Kn is equal to PU divided by phi FC prime AG. Rn is equal to MU divided by phi FC prime AGH. Kn और Rn मालूम करें तो आप इसमें ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा जो कि 1% से कम है। दिस पॉइंट इज लेस देन 1%। तो हम क्या करेंगे, विल टेक 1%। 1% से तो कम अलाउड नहीं, तो हम 0.007 नहीं लेंगे, 0.001 लेंगे, 0.01 not 0.001, 0.01। This point is 0.007। ये 1% से कम है रीइंफोर्स, हम 1% रीइंफोर्समेंट ले लेंगे। 1% कितना होगा 12/12 कॉलम के लिए? 1.44 स्क्वायर। 12/12 is 144। 144 divided by 100 is 1.44। और इससे आपको नंबर बात मालूम करें तो इसका डिजाइन बहुत इस तरीके से आसान है, लेकिन अगर आप अपने इंटरेक्शन डायग्राम के पास अवेलेबल हो, जी क्वेश्चन है तो ये Kn PU डिवाइड बाय 5FC प्राइम AG, हर चीज आपके पास ये गिवन है। PU है, FC प्राइम है, कॉलम का साइज है, Rn में आपके पास H कॉलम का साइज है। Kn और Rn मालूम हो गया तो ये आपके पास 0.007 एंड देन 0.007 is less than 0.01, so we will select 0.01 because 1% is 0.01। उसको कॉलम के एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पास 1% रीइंफोर्समेंट 1.44 स्क्वायर इंच आता है। जी इस तरह से आप अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हो तो यूजिंग डिजाइन एड्स, डिजाइन एड स्क्वायर कॉलम सपोर्ट फैक्टर लोड ऑफ 200 केप एंड इफेक्ट मूवमेंट ऑफ 80 केप द रोटेशन कर्व डिजाइन फॉर इक्वालिटी डिजाइन एड विल प्रोवाइड। ठीक है, this is the end of this lecture. If you have any question, you can ask a question. Otherwise, the lecture is over. Please ask questions. If you want to ask questions, you can ask questions.